যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না চায় তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে Hi guys. Oh, my mic isn't turned on. Yeah. Oh, my mic is in fact turned on. Hi guys. Thank you a lot for joining the live stream. I'm doing this after so long, and StreamYard keeps changing some interface or the other every day. So I have some ugly blue thing showing my name, College Street, Kolkata here. Let me see if I can change it. I couldn't find it. Okay, we'll search for it some other time. I'm in a real hurry today. I came online right now as almost sort of an emergency because there's some negative propaganda, negative publicity about Kantara Chapter 1 going on, which I had to debunk as soon as possible. I don't want to see this film. It's not going to be a flop anyway, but I don't want anybody to miss out on this historic Indian film just because of some idiotic YouTuber here and there. So I watched it twice already today, and I'm not going to give you my impression of how it felt like to watch it two times in a day. Obviously, that impact will be more. I will get to that impact later on in the live stream, but first I'm going to give you my initial thoughts only, which I had luckily noted down because my brother actually suggested so. After coming out all dazed as fuck after the film got over the first time, waiting in the food court of the mall, I went to watch it with my friends and brother. So I have those thoughts noted down. I'll go through them first, and then check out your comments on how many of you think it's a leftist propaganda of some sorts, and for that some people have apparently decided to not even watch the movie. That is absolutely ridiculous. I'll explain to you why I didn't see any such thing, any leftist propaganda and stuff, and then I'll get to why it needs to be watched, and especially what I feel after watching it twice on the very first day. I've heard it's already earned 65 crores. That I'm not feeling well after seeing what. Oh, no. Screw BJP for today. Midnight stream, yes. Don't give spoilers. No, Varun. That I never give spoilers. I don't even tell the story. स्टोरी वो लोग बोलते हैं जिनको रिव्यू में क्या बोलना है ये पता नहीं है, वो लोग स्टोरी बोलते हैं. It's gonna be hit. Yeah. It will be 1,000 crores minimum. Dinakar, how was it? Historic. Indian cinema has changed after today. Indian cinema's collective, Indian audience's collective IQ has been raised today. Indian cinema's collective standard has been raised today. See, Kantara and Uri, aesthetically speaking, visually speaking, are already the absolute benchmarks when it comes to how a film should look. Anything remotely Indic these days absolutely looks like a Kantara or is a wannabe Kantara. Any movie that is today remotely nationalistic and weighs heavily on the action side is a wannabe Uri today, aesthetic wise and looks wise speaking. These two films set the absolute benchmark about how a film should look in this particular genre. They didn't even, of course, suggest that it should look. They just did it their own way. They thought, okay, let's go for this look. Of course, they had their own influences from other things, but what they ended up doing, that has today
hijacked the minds of every filmmaker, every audience member, all across the country, to the extent that everyone wants their movies to look like that. So that was there already, okay, in terms of how is the movie. But Kantara 2, Kantara chapter 1, to be precise, has raised that bar about 100 times higher. I did not think it was possible. They have done it. Kantara 1 was already a benchmark for a whole bunch of things in filmmaking departments, in technicality departments. Kantara chapter 1 has surpassed all of those benchmarks and set an even higher standard, after which many industries, especially Bollywood and Bengal Tollywood, is going to have sleepless nights, because this is something they can't replicate with money. You can spend how much you want. You can't do this without proper knowledge and proper dedication and proper love for the craft. If you focus on business even a little more than the art aspect of filmmaking, you are screwed. You'll never make a Kantara chapter 1. Kantara 1 was already like that only, but this was on a whole other level. No, I have not seen Pratik Burade's interview views, but I have heard that it's some crazy weird take. Will it overtake Dangal revenue collection? No, it can't overtake Dangal revenue collection, because Dangal overseas is promoted by wrestling lovers, and Kantara is not going to have that kind of a niche audience. So first, before I check out all of your comments, let me just go through my points. Okay, I have noted them down somewhere. Can India cinema ever be better than this? Well, before watching Kantara chapter 1, I did not know Indian cinema could be as good as this. So obviously it will get better. Seen few reviews, people said unnecessary comedy. I'll get to that, Dinakar. If some people have said it, it's justified. If too many people said it, it's not justified, because it's for those kinds of idiotic audiences only. They have to look after some business aspects at least. Okay, let me see. Where are my comments, my thoughts? Yeah. Okay. First of all, best VFX, best fight choreography, best fight camera work, fight photography in an Indian movie ever. Okay, hands down. Propaganda or not, concept wise, spirituality, will come to all that later on. Technicality wise, technical department wise, best ever. Best ever. In VFX, nothing comes close. Not RRR. But compared to this, Bahubali is a B grade VFX CGI slop movie, okay? Compared to Kantara chapter 1. I don't know who did the VFX. If it's not DNEG, I don't think it's DNEG. Then DNEG is going to be in a laughable position, because now the expectations from Ramayan therefore will be twice as high, because of what Kantara managed with 250 crores. I usually dislike VFX a lot, because most of it is horseshit, usually, in all movies these days, no matter what the industry, no matter what the country, right? Yeah, by the way, I wanted to address this so urgently that I am tired as fuck, and I didn't even change my t-shirt. I've been roaming around all across the city today, checking out some last minute pandal hopping, because Dashami, and Kantara in the early morning, then Kantara in the late night, and then back home. And after returning home, I found out that there's some negative propaganda going on, so I had to address it. So VFX usually sucks these days in almost everything, especially dust, smoke, animals. So my god, chhod do. All of that. In 95% of the situations, the VFX is unbelievable. It's either absolutely believable, if not, it's absolutely beautiful. Because some things are so unbelievable that you know it can't even be reality. There, your brain creates some barrier, but it's so beautiful that you ignore the non realistic portion of it. For example, there's one, I won't give any spoilers, but there's somebody he meets right before coming across a shivling. Rishabh Shetty, okay? Even that animation is top notch, world class. The only problem with that scene, the VFX, the CGI quality of that scene, is the how weighty that thing or person is. That did not get established, because that's the most trickiest thing with animation, establishing weight of that object, okay? And that is what Mahavatar Narasimha achieved to a great extent. Of course, Mahavatar Narasimha was made on 17 or 20 crores, out of which I think they spent 17 crores on just Mahavatar's animation. Rest were all
pretty laughable animations. But here, the weight of that particular character was not established. But even then, I specifically mentioned this character because everything other than the weight was mind boggling, the body texture, etc. The weight is established by going into even more fine minute details of exact muscle movements, hair movements, skin movements, okay, because our eyes are trained to fathom weight of an object in front of us by the way it moves, by the way everything around it forms, by the way its limbs move, okay. In that one scene, the weight was not established, but the texture was top notch to begin with. And in everything else, everything was almost perfect, even the dust. CGI dust is one of the things I hate the most in modern cinema. Everyone keeps on doing bad dust, and everyone keeps on still trying hard to do good dust and again screw up. Every scene you see in Hindi movies, in South Indian movies, in Hollywood, everywhere, if there is something, let's say some heavy object falls, there's a lot of dust. All of that is horseshit CGI dust. Even the dust in Kantara Chapter 1 is absolutely brilliant. Now, what else? Um, yeah, fight choreography. My God, the first group action scene. Okay, that fight choreography and then the camera work there is absolutely the best ever in an Indian cinema. It's not even the climax. It's one of the first ever group action sequences in the film, and not only the choreography, even the way the set pieces happen, the things that happen during that sequence, all of that is absolutely best ever in an Indian cinema. Now, background score and songs, I don't have much to say. I had said that even if the film turns out to be disappointing, even if it turns out that Rishabh Shetty bit off more than he can chew with a jump of 250 crores from directing the previous movie in just 16 crores, even if he did that, Biyajnish Loknath and Arvind Kashyap, right? He's the DOP. I had said that those two guys can carry the movie on their shoulders alone, even if Rishabh Shetty screws up. Now, Rishabh Shetty did not screw up at all. On top of that, Arvind Kashyap and Biyajnish Loknath did their jobs way more awesomely than I even expected them to. Biyajnish Loknath, man. See, um, I have nothing to say because it's so awesome. There's nothing to add really, except saying that it's so awesome, 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 awesome. Okay, there's not much to describe at all. I'll say this: after the famous piece called Imperial March by John Williams in Star Wars, in one of the, I think in the second movie ever, da, 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 that piece, everyone thought that piece cannot be surpassed by John Williams after the first three Star Wars movies were done. Then in the fourth movie, years later, when everyone thinks the one with Liam Neeson, everyone thought no, 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 John Williams can't surpass Imperial March. He comes out with Duel of Fates, and there's some ancient Sanskrit mixed with Welsh language, etc. The lyrics are Kora Ratama Ratama Kora, etc. That song, to everyone's surprise, pretty much surpassed uh, Imperial March. Biyajnish Loknath has done something like that. I did not expect any song to be better than Vararupam here. Brahma Kalasham is better. And I don't think you all will consider it to be better than Vararupam just by listening to it, but combined with the entire movie, the way it's placed, the complete impact, Brahma Kalasham does take it a notch higher than Vararupam. Not by a distance, but just a little more awesome than Vararupam. Okay, I did not think it was possible, but it is in fact possible. And the visualizations of Brahma Kalasham, I have to say, gives a strong message of unity, and especially Dildi Dosanjh singing a song in a South Indian cinema, also very much a message of unity. We'll get to all of that. Background score. I can't believe this sort of a movie happened in India. Now, okay, let's just say background score is absolutely incredible. It doesn't bother with making memorable
melodies. Like it focused on really hard in Kantara 1. Kantara chapter 1's background score is effective to the T, doesn't focus on catchy melodies. That's a very common thing in the world of background scores. Not every background score has to be melodically catchy like John Williams or Hans Zimmer. Sometimes a lot of movies that you watch, you don't even remember that there was awesome background score, but you really like the movie, which means by default that the background score was awesome. You cannot like a movie unless the background score is absolutely kick-ass. So it's like that. You won't remember much of it, but you'll remember, oh my god, what was that? But what I really liked was that they repeatedly reused some of the songs from Kantara 1, and they used a lot of the background score pieces also from Kantara 1. And one of my favorite pieces from Kantara 1, one of my favorite motifs from Kantara 1, was used here just once, just in one scene. The melody was. Let me remember. It needs to be told. That was the best background score piece in Kantara 1 that was used here. Oh, I can't remember it. The one, oh, ding, 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 then the percussions get in. Yeah, that melody, which was in the when the interval sign came up in Kantara 1, that music has been used here as well. I absolutely love the fact that the Karma song was reused, Vara Rupam was reused, Rebel song was used, but in a very different way, of course. Um, let's see, what else have I noted? Yeah, so technical departments, there's nothing to discuss. Technical departments, pretty much all around best ever in Indian cinema. Okay, most realistic set design, and anthropologically speaking and theologically speaking, this film is so accurate and gives so many anthropological boners, etc. uh, People who are into that kind of stuff, they will feel a different kind of satisfaction with this movie. I don't know which kind of scholars Rishabh Shetty sat down with, but he definitely did. Theologically, if you do want to get into it, if you are that dedicated enough to a movie, you can get accurate. But even anthropologically, this was so accurate with the uh, different levels of politics. Okay, little kings have been described. uh, there's a there's a king for the broader picture, there's a king for this realm. Excuse me. There's a smaller king with little bit weaker powers for one specific region. The tribes have their internal hierarchies and dynamics, and the tribes themselves are in a hierarchy in the larger context. All of that has been described so accurately. More importantly, the locations are so realistic, firstly because they built half of it. There's no useless CGI fucking slop everywhere around you. There's almost none. Even if there is, you won't be able to make out that, oh, that was VFX, oh, that was CGI. No, it's all, they made their own beautiful realistic sets, unlike Bengal Files' bad sets. So that shows you 250 crores, the most efficient use of 250 crore rupees anybody has ever done in the history of mankind, I think. And um, the amount of money crunch and the amount of efficiency, the degree of efficiency with which they spent 16 crores in the first movie, is the exact same degree of efficiency that they have applied for even Kantara Chapter 1 in spending 250 crores, which I did not expect. I did think there might be some leakage and wastage. Oh, no, no, no. ये 250 करोड़ रुपीस खेलने को नहीं दिया है. एकदम एकदम जो जिन चीजों में बहुत सारे पैसे लगते हैं, but usually Indian cinema doesn't spend on those things. On those things, Kantara Chapter 1 has spent and spent and spent. So, yeah, historically, anthropologically speaking, great. And the geography is so beautifully well established. I like when the map of the location, कि कहाँ से किस तरफ जाना है, किसका घर कहाँ पे, all of that is, when that is established, I really like it. That was one thing Lion King, the recent Lion King live action animated remake did way better than the original Lion King animation film. You could exactly feel where Mufasa lives, where Simba got screwed up, etc. That has been kind of achieved here. The palaces are realistic, therefore no need of PS CGI everywhere. Okay, because it's so well established and well designed and so realistically designed. Okay, exactly how
the vibe of a palace back then would be. Okay, and this has been one of my personal sort of expectations, hopes from Indian cinema, that one day I'll get to see realistic, finally realistic human level depictions and conversations of historical people, figures, and royalty. Okay, every time a king is described or depicted in Indian cinema or TV shows, it has to be some uh, overacting geared up to 150, and then you, as if you are doing some village theater performance without any mics, so you have to be the loudest you can possibly be every time, every goddamn time. And I expected Raj Shetty to actually break this evil, that this terrible circle someday. I had hoped after watching Garuda Gamana Vrishabha Vahana that someday a man like Raj B. Shetty needs to direct Mahabharat, or maybe Anurag Kashyap with his direction style, but he's so leftist that he won't be able to, I guess. I can't believe this, but actually Rishabh Shetty achieved that in Kantara Chapter 1. Okay, I have craved for this in Indian cinema for so long. The non-dramatic, real life conversations between kings, and a retired king and his son, an evil king even, and his conversations with his henchmen. All of that is so beautifully written. You know, when I say 250 crores has been well spent, this is what spending it well means. Like I've given this example many times before in the context of Bengali Tollywood. The budgets are low, therefore bad stuff is being written. It's not always a knowledge and skill issue. It might be to a large degree in Kolkata, but it's not even getting to that because the budgets are so low. So you are supposed to work for a very short period of time on your script and screenplay. You can't give me 500 bucks and then say, no, take your time, spend 2 years on the script. No, you'll have to pay me for 2 years. Okay, and that's not possible according to West Bengal's budget, because the biggest hit our movie has a movie industry has had in the last 50 years is Bohurupi, and it made 18 crores. So you could tell that possibly has been done here as well in the screenplays, with the realistic dialogues of that king. You can see that evil king. You can see the guy played, the man played by someone called something called, his first name is Gulshan something. I really like that actor because of a movie called Shaitan, not Ajay Devgan's Shaitan, a much older Shaitan from 2011 or 12. It was produced by, I think, the guy who made Sacred Games, and it was really a cult classic for urban kids back then. And there was a song by Bhayanak Maut even in that movie. I really loved that movie. Kalki Kochlin was also there. So this guy was there. That's where I know him from. So his acting was top notch. Everybody knew. Judging from the trailers, I thought it would be some over the top, feminine, evil king bullshit. It's absolutely none of that. It's the most realistic, satisfyingly real life depiction of a king you'll ever have seen. Not realistic in the sense that therefore all kings are evil. No. In terms of any royalty, real conversations are rare, if not ever. And the way an evil king has been described, depicted, we require more of this. um let's see what else I want to talk about. Yeah. mm, yes, extreme efficient use of 250 crores, especially even in the story and screenplay. Okay, now the part everyone keeps talking about, the first half. People will tell you the first half is disappointing now because they saw what happened in the second half. I was not going to use the word disappointing. I was going to say something else. I'll now tell you the sentences I was going through in my head during the first 60% of the movie. Okay, it was pretty much a completely different film. Let me explain to you what happened in the first 60 minutes. Not 60 minutes, 60%. Shark is saying the actual purpose of CGI and VFX is to be so blended in and concealed that it can fool viewers completely, so that they don't need to suspend their collective disbelief. They simply, that is the point. And somehow all directors have missed the memo, it seems. And that is what is achieved here. Okay, there's so much practical effects, beautiful special effects, accurate VFX, accurate CGI. So they don't go for so insanely unbelievable things to look at, that the VFX does the job well
first and foremost because of that. But even then, whatever things they show believable, it would require real animals and stuff. They have done it absolutely beautifully with VFX, which I can't believe. And uh, the fact that it was not a VFX slop is so, I'm so grateful to the makers of Kantara for this. I'm so frustrated and tired of seeing unnecessary bad VFX in every scene, in every genre. And there was something I had said in my review of Kantara 1, that Rishabh Shetty really respects the audience's time. It felt like that with its fast cuts and stuff, fast edits, chop chop chop. That was really great. But he did spend some extra time in something else, for which a lot of people are blaming Rishabh Shetty, and I don't think they have the right to, because of commercial reasons. I'll get to that now. So the first 60% of the movie, especially the first half, was basically an action adventure comedy sort of a movie. Okay, it was practically Pirates of the Caribbean in an Indian setting. Okay, it was an absolutely Indian adaptation of Pirates of the Caribbean. The music often references some Pirates of the Caribbean kind of vibes as well in the background score. Okay, so because of the music, I think you can be pretty sure that yeah, that was the vibe they were deliberately going for. कि ऋषभ शेट्टी को अभी जॉनी डेप बनाना है. During that phase of the movie, I was going on thinking that, okay, what is going on here? Camera work is best ever, music is best ever, okay, set designing is best ever, action choreography best ever, but I am still a little saddened with what's going on in the screen. Now, how am I going to talk about this in my review? What am I going to say? That yes, I saw a movie first day first show because I expected so much from it, and I am actually impressed by everything it's doing in the technical aspects, and I'm still going to say that um, it was not for me, because what happened was there was a lot of comedy. It was an action adventure comedy thing, but the main problem was it was not even a Kantara franchise movie in spirit. The core ethos of the movie, the core vibe of the movie, was completely ignored in the first half. But I tell you, it was deliberately, and you will later realize that. Why deliberately? Because you needed to create a contrast between the first half and the second half. The second half comes across as that awesome because of the first half. And the first half is an absolute mainstream action comedy blockbuster, okay? For which people help movies make 600 crores, 700 crores, 900 crores in box offices. That's how Kantara Chapter 1 first half is. And why should we blame Rishabh Shetty for making first half of a movie like movies that earn 600, 700 crores with way better VFX, CGI, camera work, background score than those 600, 700 crore earning movies? The audience wants it. No, you are the audience who likes that kind of horseshit comedy repeatedly. You like that kind of idiotic, pointless action after one action set piece after the other for your entire movies. How else do any Bollywood movies survive? Majority of you have no right to complain about Kantara first half's action and pace or comedy degree at all. I have the right to, because I don't watch such horseshit movies. Now, this was not horseshit because the quality and craftsmanship of it was absolutely world class, way better than most Hollywood movies these days. So I don't see who all are complaining about this. Okay. As my disappointment was increasing with such a weird decision, that was mainly what I had to say. That okay, Rishabh Shetty took a very interesting, different direction and decision with the movie. It was an absolutely deliberate decision, but I'm not for it. So the very disappointed, sad feeling I was going through was, imagine you grew up with a close friend of yours. He's still a very, very close friend of yours, but now suddenly, because of some significant career jump, he's become a big shot in something, okay? And you get invited to a party by him. And there you see all sorts of film stars and cricketers and significant politicians, chief ministers visiting, MPs, etc. And you want to hang out with your friend wants to hang out with you. You both still like each other, but in the party, you are left waiting, having a drink on the corner by your own, because your friend now needs to hang out with those cricketers, film stars, and politicians.
So you kind of think, oh, बहुत बड़े हो गए बेटे, हमको भूल गए. That was the exact feeling I was going through. कि अच्छा, now you have 250 crores, now you want to become a mainstream action blockbuster, so you forgot the original Kantara fans, bro. This is what you this is what you invite me to the cinema theater for. Yeah, I like everything that's going on. It's good stuff. It's technically top notch stuff, but this is not my vibe. This is not my cinema. This is a one time watch. Therefore, for the first 60% of the movie, I'm thinking that, because for about 20 minutes after the interval, that thing goes on, okay? And then out of the blue, about half an hour, 45 minutes after the interval, it becomes a Kantara prequel all of a sudden. And from then on, there's nothing to complain anymore. Okay, let's see what else I noted. Um, First half was an action adventure. Yeah, it's going to be a hit among people who have not even watched Kantara 1, etc., even for lay audiences, because of the first half. Um, Absolutely love the reuse of some songs. Yeah, there's one interesting thing that happens in Kantara chapter 1 that didn't happen in Kantara 1. In Kantara 1, the villain was a human versus gods, Ugra Rupas and nice Panjuli. Here, there is even a villain or villains even in the spiritual realm. That is why I was saying that even theologically speaking, this movie is so well crafted. The story is so well crafted. Okay, just to harp upon the first half issues a little, a lot of people are saying that pacing was going down and too much time was being taken up. Too much time was being taken up to make it a commercial success based on data. Pacing had to go down in some spots to set up the impact for the second half of the movie. Okay, there was no way, because of the interesting decision to go about it this way, that the first half will be all fun. Okay, 250 crore है हमारे पास अभी, चलो कुछ मजे करके दिखाते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या उखाड़ सकते हैं, वो सब दिखा देते हैं. So let's make Pirates of the Caribbean in part 1 and a Lord of the Rings in part 2. That's basically the two movies you are going to watch here. This is our Lord of the Rings and our Pirates of the Caribbean at the same time. Absolutely. तो वहाँ पे टाइम कम करने का कोई सिचुएशन संभावना ही नहीं था. और पेसिंग का तो छोड़ ही दो. हाँ, कॉमेडी ज्यादा है तो ऐसे घटिया कॉमेडी फिल्म्स देखना बंद कर दो, तो प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास सिग्नल जाएगा कि तुमको एक्शन मूवीज में, सीरियस मूवीज में इतने सारे कॉमेडी नहीं चाहिए. मार्वल्स में भी तो वो करके करके सत्यानाश कर दिया. पहले थोड़ा कूल लगता था. यस वीएक्सटी, दैट इज व्हाट आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि कांतारा 1 में ऐसा कम कॉमेडी कहाँ था. तुम्हारे दिमाग में वो टिका नहीं क्योंकि सब लोग आखिरी के 15 मिनट के बारे में बात करते हैं. कांतारा 1 में जितना कॉमेडी था, कांतारा 2 में उतना ही था. तुमको एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा वो कांतारा 1 का सीरियस एंडिंग का वाइब है अंदर, तो कांतारा 2 का शुरू ही सीरियसनेस से होगा और एंड भी सीरियसनेस से होगा. वो पॉसिबल नहीं है. Unity, a message of unity repeatedly in the cinema, surpassed expectations in all departments. Songs, oh yeah, I thought before watching the movie, I thought the new songs that have come about, Brahma Kalasham and the Rebel song with Diljit Dosanjh, I thought they are not that memorable. Oh my god, does this mean B. Ajnish Loknath is screwing up, or does this mean that Rishabh Shetty and Vijay Kiragandur are probably giving B. Ajnish Loknath bad briefs, because of which he's making songs of this sort? Because Kantara 1 songs were awesome from the get-go, even without watching the movie. Oh no, that's not the case. In the movie, those two songs work as well as any song worked in Kantara 1. Okay, rest assured, don't worry at all. Those two songs absolutely are brilliant, even in the, especially in the movie. Okay. Razor sharp cuts and fast edits. Okay, now we'll get to where the fuck is the leftist propaganda. Can anybody tell me what is leftist about this movie? Do you think Rock the Beach 2 is going to be Aman Ki Asha? I don't know. I have not watched 1, nor will I watch 2. Because in case the theater don't have English subtitles. Oh, वरुण देव, मजेदार चीज हुआ, सेम थिएटर में ही मैंने देखा, मगर सुबह को मैंने हिंदी देखा, सबटाइटल्स नहीं था. जब रात को देखा तब हिंदी में देखा, सबटाइटल्स था.
तो अगर कन्नड़ा में देखो तो सबटाइटल्स शायद होंगे। आई वुड सजेस्ट कि भाई कन्नड़ा में ही देखो अगर हो सके तो, क्योंकि हिंदी का वॉइस ओवर, मतलब इस मूवी में नहीं, वैसे ही हिंदी वॉइस ओवर्स, ट्रांसलेशन डब्स थोड़े खराब ही होते हैं, बहुत 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 ओवर एक्टिंग रहता है, जो मुझे पता है कि ओरिजिनल कांतारा डायलॉग्स में नहीं है, क्योंकि एक दो बार एंड ऑफ द सेंटेंस यू कुड हियर इन ऋषभ शेट्टीज वॉइस, एंड आई हैव repeatedly seen many Kannada scenes in the Kantara 1 movie as well, and they don't come across as that insane, loud, dramatic voiceovers. But that is the case in the Hindi voiceovers, so avoid if possible. And it was going to be even worse in other languages. But Hindi voiceovers is such a turn off in the entire movie. It doesn't bother you too much because you are used to hearing such bad voiceovers, but if someone is used to hearing good voiceovers and stuff, it will hurt your ears. You had watched and reviewed Rock the Beach one, if I remember. No, Bohurupi. Did you do any work in Bengali dubbing? Yes, I have. I searched for Shwan Book My Show, saw Bengali dub option alongside Hindi, Kannada. Yeah, I didn't watch. I didn't work in Kantara chapter 1. Some last minute weird stuff happened because it was not going to get any halls. They did it with some other people, which was not supposed to happen at all. It was very surprising. Some ऐसे ही कुछ random करके छोड़ दिया बंगाली में. Other the combat scenes as good as the best series in the West, like GOT, Gladiator, etc. It's more. I have not watched GOT, but Gladiator, yes, Varun Dev. It's as good as Gladiator, but not on the same scale, because after all, Gladiator was about much larger kings, much bigger, more significant kings and bigger kingdoms. So for those reasons, it's not that big in scale. But excuse me, the degree of realisticness wise, yes, absolutely Gladiator. The Hindi voiceover industry is dominated by Marathis. Explains why we screwed it so much. Why are Marathis bad voiceover artists by default? I don't like dubbing in general, good or bad. Just get over. No, bro, VXT. Then I would have to spend the entire time looking down. No, no. When did we have slaves? Were they shown as slaves? They were shown as random thieves who were getting dealt with. Like, okay, you are a thief who now works under me. So instead of karavas and feeding on tax money all the time, you'll work. I'll keep the cut money. That was not slavery that was shown in the movie. Rebellious side is leftist. Haven't seen the movie yet. Abhi jaake aaya, bro. Mast laga. They did a good job. Om Namah Shivaya. Yes. So tell me, what is the leftist propaganda about this, or should we just watch Pratik Borade's review? Tell us about the music and what do you think about think the filmmakers could have done better according to you. Background score, wait, to nitpick, yes, as awesome as the background score is, as effective as it is, it the only thing left to do was also make memorable melodies out of it. Can't be a priority all the time, doesn't need to be a priority all the time, but yes, memorable melodies would be great. But they have their collection of memorable melodies from BGM pieces from Kantara 1, so they use that. um of course, I like to see okay, that's because it's not our native tongue, why tend to exaggerate. I see, it's possible, but then why are even Bengali voiceover artists usually so bad and overact? I think it might be an industry best practices mythos issue. They believe that kind of voiceover gets them jobs, and good voiceover is not appreciated. Okay. So somebody said, since no one's going to tell me exactly what is leftist about it, I heard somebody say there's some anti-Kadamba dynasty propaganda in this movie. I don't see how. Kadamba dynasty is not even depicted here. Okay. For the entire movie, one representative of the Kadamba dynasty visits one religious ceremony for just one afternoon. That too in the middle of a song. The main villainous royal family in the movie is one regional vassal of the Kadamba dynasty. Now, historically speaking, who can boast, if today we met the spirit of some ancient king, who could have guaranteed that yes, all of their vassal states were absolutely top-notch quality people who ran the state according to dharma?
कि वैसल को चूतिया दिखा दिया, इसका मतलब कदम्बा डायनेस्टी चूतिया है? What kind of logic is this? And I can guarantee you this, that Kadamba dynasty will be shown in great light in part 2. They have already announced part 2 at the end of the movie. So their Kadamba dynasty will actually show up and they will be shown in good light. There was a hint given because the one time during the religious ceremony where actually a representative from the Kadamba dynasty comes about, he is not shown in any sinister, shrewd, villainous light. Okay, एक तो पता चलता है ना कि ऐसे ही डायरेक्टर एस्टेब्लिश करना चाह रहा है उस कैरेक्टर को. He was shown as a very nice, heroic person, okay, because with the camera angles and stuff, unless there's some gigantic twist and कदम्ब डायनेस्टी के कुछ खराब राजा ही निकाले फिल्म को डिपिक्ट करने के लिए, हाँ तब हो सकता है. तब आई डोंट नो व्हाट्स द हिस्ट्री, मे बी देयर सम कर्नाटका गोवा राइवलरी और समथिंग. कदम्ब डायनेस्टी आई गेस रूल्ड इन गोवा एंड दे आर नॉट फ्रॉम कर्नाटका, ऐसा कुछ अगर हो तो कोई बताओ यहाँ पे, दैट मे बी द केस. But so far, the hints I've got, the vibe I've got, they're going to show Kadamba dynasty in good light. These were some vassals of the Kadamba dynasty. And it was repeatedly being explicitly reminded to the audience that we are just vassals of the Kadamba dynasty. And बोला जा रहा था कि अच्छा ये करो नहीं तो कदम्बा जाएगा, या फिर ये कर लो फिर कदम्बा के लोग आएंगे, etc. Okay, that's kind of the stuff. I'm surprised this movie has been researched, written, shot, and post-produced and released with 3 years with such good. No, I think the first half was written earlier. Probably it was some leftover script from some other movie, because it feels like a different movie altogether. तो कुछ एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का कुछ इंडियन एडेप्टेशन बनाने का प्लान रहा होगा, तो यहाँ पे ही जोड़ दिया एक साथ. VXT is saying can't spell dynasty without saying nasty. Yes, थोड़ा बहुत नास्टीनेस तो होगा ही. ऐसा क्या पॉसिबल है कि हर डायनेस्टी बहुत बढ़िया होगा, प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा होगा, उस डायनेस्टी में हर लोग प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा होंगे, और यहाँ पे अगर कदम्बा डायनेस्टी के खिलाफ बोल के भी कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो भी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि भाई जो लोग कदम्बा डायनेस्टी के मतलब द हीरोइक साइड ऑफ ऋषभ शेट्टी एटसेट्रा, they are being shown as the protectors of dharma only. They are saying कि अच्छा ये लोग आपके पूज्य थे, आज से हम इनकी पूजा करेंगे, माँ गंगा प्रोटेक्ट करेगी. तो भाई ये क्या लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है ये? एक दिन एक यूट्यूबर का बात सुन के ऋषभ शेट्टी पर शक मत करो. He doesn't deserve that. ये कल्ट थिंकिंग होता है. इतने सारे यूट्यूबर ने वीडियो कर लिया, कितनों ने बोला कि लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है. मुझे लौड़े कुछ नहीं दिखा लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा. प्रतीक बोला देखो दिख गया, कितना बड़ा जीनियस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है. पूरा दिन 2029 में कौन पीएम बनेगा वो सोचते रहेगा, तो हर मूवी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही दिखेगा. ओटीटी में मूवी आ जाएगा तो देख लूंगा. नहीं, ओटीटी का मूवी नहीं है ये, आईमैक्स में देखने का मूवी है, और पूरा फिल्म आईमैक्स में शॉट है भी नहीं. क्लाइमैक्स में कुछ सीन में आईमैक्स में अचानक फुल स्क्रीन हो रहा था, तब जाके समझ में अच्छा ये सीन्स आईमैक्स कैमरा पे शूट किया गया है, बाकी सीन्स सब आरई एलेक्सा एलएफ में शूट किया होगा. Okay, let's now then check out what the hell did Pratik Bhattacharya say. Dada, you must have got boner with our character said, "Aaj se koi kar nahi." Yes. How the hell you haven't seen GOT? GOT I didn't want to see because of so many nude scenes. It annoyed me. Ke, acha, you need so many nude scenes to succeed as a web series. That means you are probably shit. I later on realized from so many reviewers that it's not in fact shit, but it was too late by then to get into that series. Years later. देखते हैं कहाँ पे है लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा इन कांतारा. नहीं, प्रतीक बोरादे से ये एक्सपेक्टेशन था भी नहीं अगर उन्होंने सच में ऐसा इडियोटिक चीज बोला है. प्रतीक इज गोइंग विथ फ्लो. की विजयादशमी की शुभकामनाओं. तो आज कांतारा चैप्टर 1 थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और मुख्य भूमिका में है ऋषभ शेट्टी, उनके साथ में ही जयराम. अच्छा हाँ, तो प्रतीक बोरादे का लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा कहाँ पे है ये सुनने से पहले और दो चीजें स्पेसिफाई करना है कि वहाँ पे जो हीरोइन है समथिंग वसंत, कोई कन्नड़ी का यहाँ पे अगर लाइव स्ट्रीम देख रहा है तो ये बताओ भाई ये कैसे पॉसिबल है. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन आई हैव सीन इन माय लाइफ. I had a ranking of the most beautiful women. Kate Winslet had to be on top and त्रिधा चौधरी. ये मेरे बैकग्राउंड को क्या हुआ? अरे स्ट्रीमयार्ड ने फिर से पूरा का पूरा UI चेंज कर दिया है, इसका मतलब है दिस इज सो स्टूपिड.
कहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं? एक्सक्यूज मी, ये है ना बैकग्राउंड? नाइस। हाँ, तो Trisha Chaudhary, I think, has aged too quickly because of too much jogging, I think, jogging cardio. But Kate Winslet is still pretty beautiful. This woman has to be in the top 3. Now, Kannadigar people tell me, has she done so many surgeries in her face that she's so beautiful? And if so, she has probably done surgeries from the best surgeon in the whole world. And if not, it's so, again, refreshing to see a face without any surgeries these days. And if it is without surgeries, well, God bless her. Uh, Incredible. You can't take your eyes off that woman. And the clothes she wore, I don't know if that heightened her beauty. I've not seen her in anywhere else in other clothes, so that would be hard to understand. But recently I came back from Goa from that conference, so I've recently received a large dose of an understanding of what kind of beauty women are in Goa, Maharashtra, Karnataka. I met a lot of women from those areas, so that is exactly what I noticed here as well. And you can watch the entire movie on mute just because of her. And the other thing about her was the thing she did brilliantly in terms of acting. Her dancing was great anyway. The way she sat and the way her body language was in every scene, which is absolutely probably 60-70% of the credit of Rishabh Shetty, because he's the director. He directed her to sit that way, etc. Her posture, etc. Everything about her in her body movements told a story. She was giving a very, very deliberately, she was giving a specific vibe about the character or about the situation. Okay, what kind of a streaming is this? दादा चैट से कंफर्म करवाओ कि प्रतीक ने स्पॉइलर तो नहीं दिया है. आई डोंट नो. रुक्मिनी वसंत, राइट? Oh my god, what a face. She's the girl from side A, side B, Sapta. Acha. But tell me, is her face very, very much artificial, full of surgeries? Bengal, Assam regions are potent for this kind of filmmaking for mysterious tantric practices. Topic to hai. Stop simping. I have not done any amount of the amount of simping that she deserves. I just touched one drop in the ocean. Pratik makes good points sometimes, but he is what we call a Puritan, similar to the Christian Puritans. What are some good films and series which are relevant nude scenes but are not shit? Asking for a friend. Gandu. Retrowave Bell is shit. In fact, season 4, acha, I don't know. There was a plethora of nude scenes in the first couple of seasons, but the show is still good until 6, I'd say. Acha. Okay. Aryan Prototype. Okay, so nobody knows if she has surgeries or not. Okay. Now let's check out Rishabh, Pratik Barade. रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया आदि आदि मुख्य भूमिका में है. 2 घंटे और 48 मिनट की ये फिल्म है. अब देखिए, ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है. फिल्म में सस्पेंस क्या है, स्टोरी लाइन क्या थी, कहाँ क्या हो रहा है वगैरह, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले. परंतु हाँ, सामाजिक चित्रण कैसा था, कौन सी बात मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी, नहीं लगी वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं. तो अगर आपको उतना भी नहीं जानना, स्टोरी लाइन के बारे में तो मैं चर्चा नहीं करने वाला, परंतु आपको अगर उतना भी नहीं जानना तो फिर फिल्म देखने के बाद में या जब भी आपका मन करे उसके बाद आप ये वीडियो देखना. Achha, I don't know if Pratik Borade has said this or not, but some other idiotic film reviewer might say this, so I'll just debunk it beforehand. I know if someone is not being attentive, they might mistake it for that, which is Dravidian propaganda, anti-North propaganda, which would be hilarious with Diljit Dosanjh singing a song there, but it's not even that. The good guys in the movie are a tribe, and the bad guys happen to be fair-skinned kings, but there is one other villain group, which is also a tribe. Okay, so there's no Dravidian propaganda in this movie, and there's no anti-Kadamba propaganda in the movie because the Kadamba dynasty is not even shown here. Let's see. सर्वप्रथम अगर संक्षेप में मेरा अनुभव आपको बताऊं तो ना, मुझे फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. पसंद ना आना वो भी बहुत दूर की बात है. चलो, पसंद नापसंद होती रहती है फिल्में वगैरह. मुझे व्यक्तिगत रूप से फिल्म बहुत बहुत ज्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक और फर्स्ट हाफ के बाद निकल गया होगा. डेंजरस लगी. और मैं इसमें कुछ एक्सेजरेट कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है. मैं उल्टा जितना अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकूं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है. उल्टा ये समझ लीजिए कि मैं बहुत ज्यादा कम बता रहा हूं. जितना भी मैं बताऊंगा वो मैं समझ लीजिए कि मैं केवल 1% आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिल्म देख करके जो मैंने फील किया वो इतना
मुझे व्यक्तिगत रूप से उन बातों ने इतनी पीड़ा दी है ना कि उसकी कोई सीमा नहीं है। Retroif, this is the most popular film reviewer in the Indian right wing. And to be very fair to him, I have never criticized him publicly ever in my streams. I have defended him many times when people have called him Puritan, etc. I absolutely like his reviews a lot because the kind of background and vibe he comes from, even then the kind of stuff he says is very, very knowledgeable and respectable and acceptable. Today he has lost his shit, I'm guessing. आज मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि मैं ना थक गया हूं सच में ये सब बातें बोल बोल करके, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ये सब बातें बोल के, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब फिल्म के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले 2-3 फिल्मों का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अभी 2 वर्ष पहले या 1.5 वर्ष पहले ARM नाम की एक फिल्म आई थी, देखिए, जिसका पूरा नाम था अजयंते रंदम मोशनम। ये मलयालम फिल्म थी। उसकी छोटी सी मेरा जो रिव्यू था ना ARM फिल्म का, उसकी छोटी सी क्लिप आप यहाँ पर देखिए। और उस उल्कापात के माध्यम से कोई उसे सितारा कहा गया है फिल्म में, उसमें एक विशिष्ट धातु पृथ्वी पर आकर के गिरता है। जिस क्षेत्र में गिर रहा है केरला के, वहां पर एडक्कल राजवंश का राज्य है। एक हिंदू राजा है, उसके शरीर पर आपको हिंदू सिंबल्स देखने को मिलेंगे, तिलक लगाया हुआ वो राजा आपको देखने को मिलेगा। उस राजा को जब इस उल्कापात के बारे में पता चलता है, वो वहां पर आता है और देखता है कि इसमें कोई विशिष्ट ऐसा चमकीला धातु है। तो फिर वो उससे एक भगवान की, ईश्वर की मूर्ति बनाने के बारे में सोचता है। दीपक बना रहा है वो। दीपक तो सामने ऐसे दिया दिख रहा है, पर उसके पीछे एक देवता की मूर्ति है। एक बड़ा मंदिर में वो मूर्ति रख रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना उस मंदिर में मूर्ति रखने की, तो जो कारीगर है वो समाज के पिछड़े वर्ग से हैं, फटे टूटे कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, और जैसे उन पर बहुत अत्याचार करके उन्हें एक्सप्लॉइट करके वो मूर्ति बनवाई जा रही हो, इस प्रकार से उन्होंने विजुअल्स के माध्यम से वो बात दिखाई है। और ये जो धनाढ्य राजा है वो बड़ा ही ऐसे बैठा हुआ है। ये सामाजिक चित्रण उस समय का उन्होंने किया है। अब मूर्ति बन जाती है, मंदिर में रख दी जाती है, समाज के पिछड़े वर्ग को दर्शन करने की अनुमति नहीं है। ये पूरी फिल्म में ही तीनों ही टाइमलाइंस में बार-बार उन्होंने दिखाया है। अब कुछ समय के बाद में उस जगह पर एक समुद्री मार्ग से मोहम्मद नाम का एक समुद्री लुटेरा वहां पर आक्रमण करता है। आक्रमण होने के बाद में ये जो एडक्कल राजवंश है वो डर जाता है, उनके सारे सिपाहियों को वगैरह वो बंदी बना लेता है या उनको वो मार रहा होता है, ये विदेशी आक्रांता। इतने में जो राजा का मंत्री है, एडक्कल राजवंश के राजा का जो मंत्री है, वो ये कहता है कि क्या हम पोर्तुगीजों से कुछ सलाह मांग लें कि इन विदेशी आक्रांताओं से हम कैसे लड़े। तो मैंने जब वो डायलॉग सुना ना, जगह नहीं थी लोटपोट होकर हंसने की, पर हंसी दबा ली मैंने अपनी। अब ARM फिल्म के बारे में मैंने आपको जो बताया वो आप याद रखना। इसके बाद में अभी हाल ही में लोका नाम की फिल्म आई थी, उसका मैंने रिव्यू नहीं किया है, वो भी मैं डालूंगा आने वाले 2-3 दिनों में। लोका का भी रिव्यू मैं डालने वाला हूँ, मैंने फिल्म देख ली है। उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर वगैरह चर्चा की थी कि फिल्म में उन्हें क्या बात प्रॉब्लमेटिक लगी वगैरह, हमारी हिंदू सभ्यता को, संस्कृति को, इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया है, कैसे प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर चर्चा की थी। उसकी अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो वही हिंदू राजा एक दिखाए हैं केरला के, कितने दरिंदे थे, बिल्कुल किसी हैवान की तरह, दरिंदे की तरह उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है। जो जनजातीय समाज है, ट्राइबल्स हैं, उन पर वो कैसे अत्याचार करते थे। मंदिर में उन्हें आने तक नहीं दिया जा रहा था। मंदिर में आने के बाद में छोटे छोटे बच्चों को इस पे लगाना चुभा इसमें। तो प्रॉब्लम है कि पहली बात तो ये बताओ कि ऋषभ शेट्टी कैसा आदमी है। उससे उसके अगर मूवी में ये सब तुमको दिखे तो तुमको तो ये कंक्लूड करना चाहिए कि ऋषभ शेट्टी वैसा आदमी है। तो ऋषभ शेट्टी ने 16 करोड़ में नॉन लेफ्टिस्ट मूवी बनाया और 250 करोड़ में लेफ्टिस्ट मूवी बनाने का डिसाइड किया। लेफ्टिस्ट ने, जॉर्ज सोरोस ने फंड किया क्या मूवी? कहाँ से अचानक ये लेफ्टिस्ट एंगल लेने का बात दिमाग में आया ऋषभ शेट्टी के? दूसरी बात है कि चुभा प्रतीक बोरादे को इस जगह पे है कि हिंदू राजा को विलन कैसे दिखाया, यही है और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि अत्याचार हो रहा है, मतलब हाँ, लेफ्टिस्ट अगर उसको मूवी को यूज करना चाहे तो शायद कर पाएंगे। बोलेंगे कि देखो कुछ लोग तो आजकल सिर्फ मूवीज बना रहे हैं कि मुस्लिम राजाओं ने आके कितना अत्याचार किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हिंदू राजा भी अत्याचार कर रहा था। तो अत्याचार का जो डिग्री है इन दोनों में, जो अंतर है, वो अंतर हमको तो पता है और वही दिखाया भी है। छावा जैसी मूवीज में जो रियलिटी है, जो डिग्री ऑफ अत्याचार है, वही दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी जो डिग्री ऑफ अत्याचार होता था कुछ राजाओं के हाथों, कुछ प्रजाओं का, वही दिखाया है। आर्ग्यूमेंट क्या है कि मुसलमान आने से पहले कोई भी राजा हरामी नहीं था भारत के इतिहास में। तो धर्म नाम का चीज जरूरत ही नहीं होता, अर्थशास्त्र जरूरत ही नहीं होता। अगर वैसा होता तो लॉ बुक नहीं चाहिए। हर राजा बाय डिफॉल्ट हिंदू है, पूजा पाठ करता है, बहुत बड़ी आदमी है। अगर कोई भी राजा ने किसी पे भी कभी ना कभी अत्याचार किया है तो उस पे क्या हम मूवी नहीं बना सकते? या फिर इसलिए नहीं बना सकते हैं कि अभी एक पॉलिटिकल माहौल दूसरा चल रहा है कि अभी हमको ढूंढ के सिर्फ और सिर्फ हरामी मुस्लिम राजा ही दिखाने हैं?
अच्छे हिंदू राजाओं का कोई बुरे हिंदू राजाओं का भी दिखाने का टाइम नहीं है, वैसा करे। तो अब उस एरा का कर्नाटका का कहानी ना बताए, या फिर उस एरा का कर्नाटका में किसी के साथ किसी का बवाल नहीं हो रहा था। और अगर भोसरी के बवाल हो रहा था तो जो पावरफुल ज्यादा है वो पावरलेस के ऊपर क्या करता था? कुछ भी हार्म नहीं होता था, कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर यूज ऑफ फोर्स नहीं हुआ कभी भी। अगर ये आर्ग्यूमेंट है तो फिल्म रिव्यू करना पहली बात छोड़ो। वे कैसे हैवानों की तरह, मॉन्स्टर्स की तरह मार रहे हैं, ये सब बातें फ़िल्म में उन्होंने दिखाई थी। और एक पादरी है, उसे किसी एक सेवियर के रूप में वगैरह वो फ़िल्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद में मिन्नल मुरली, आपको फ़िल्म याद ही होगी, उसका ओपनिंग सीन आप याद करिए। जो हिंदू राजा थे, उनको बिल्कुल दरिंदे, मॉन्स्टर्स की तरह, या समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, हाँ, यहाँ पे भाई हिंदू राजा इज नॉट द फैक्टर बिकॉज द विक्टिम्स आर ऑल्सो डिवाउट हिंदूज। ओके, अगर कोई आके बोले भी शिवा वाज नॉट हिंदू एक्सेट्रा, फिर भी वो क्लाइमैक्स तो छोड़ दो, उसके अलावा भी वो संस्कृताइजेशन एक प्री वैदिक एरा तो था। अगर आर्यन इन्वेजन थ्योरी गलत भी है तो भाई वैदिक सभ्यता कहीं पे तो पैदा हुआ था। बाय डिफॉल्ट हर जगह पे अचानक से पैरेलली 5000 साल पहले पैरेलली सब जगह पे बैठ के लोग ऋग्वेद कंपोज कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। तो अगर हम मान ले कि ये हरियाणा रीजन में ही इस सभ्यता का जन्म हुआ था, तो फिर वो ग्रेजुअली ईस्ट के तरफ तो आया, साउथ के तरफ तो गया। वहां पे जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, पहले युद्ध, फिर उसके बाद एक नेगोशिएशन ऐसे, या फिर थ्रू ट्रेड, या फिर ब्राह्मण आए, नेगोशिएशन हुआ। कैसे नेगोशिएशन होता अनएडुकेटेड ट्राइबल्स के साथ, वो तो प्रश्न अलग है, मगर वो हम प्रतीक बुरादे से पूछ लेंगे कभी उनके एंथ्रोपोलॉजी क्लास में। मगर एंड रिजल्ट जो हुआ कि अच्छा ये तुम्हारे देवता है, अच्छा ये मेरे देवता है, ये देखो रूप काइंड ऑफ सिमिलर है ना, हाँ हाँ ये तुम्हारे ही रूप है। या फिर जैसे कि एक स्टोरी है कि एक समय पे गुलिगा और पंजुल्ली में भी कॉन्फ्लिक्ट था। वो कॉन्फ्लिक्ट आके रिजॉल्व किया था माँ दुर्गा ने। इस स्टोरी से हम सोशियोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली क्या समझ सकते हैं कि गुलिगा के भक्तों में और पंजुली के भक्तों में शायद बवाल रहा होगा। वो बवाल शायद आके मिटाया होगा वैदिक लोगों ने आके, इसलिए माँ दुर्गा को ऐसे स्टोरी में वीव इन कर दिया गया। तो अगर बवाल होके, अगर बिना बवाल होके भी ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, जो कि जैसा दीपक कहते हैं कि एक हिंदू सभ्यता जो है वो एक पीस ऑफ क्लॉथ है जिसमें डिफरेंट थ्रेड्स को यहाँ पे सू इन कर दिया गया है। तो वो सुइंग इन प्रोसेस भी इस फिल्म में दिखाया गया है। वो बहुत बहुत बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्री वैदिक सभ्यता और फिर पोस्ट वैदिक ये कॉन्ग्लोमरेशन मिलता है, यूनाइट होता है, और उसके बेसिस पे कल्चरली जो मिलाप होता है वो डिपिक्ट किया गया है। वो गाने में, अरेंजमेंट में डिपिक्ट किया गया है। उस अरेंजमेंट का कोरियोग्राफी में डिपिक्ट किया गया है कि पैरेलली वो ब्रह्म कलशम सॉन्ग के एंड में, ठीक है, पैरेलली हेवी ट्राइबल एपिक लार्ज ड्रम्स बज रहे हैं और यहाँ पे प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है। कोरियोग्राफी में भी वैसा है। वीडियो निकलने दो, दिमाग से प्रतीक बुरादे का नाम हट जाएगा। तो चलो, मेरा कहना ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो सो कॉल्ड ये पिछड़े हुए आदिवासी, जनजाति, वनवासी, जो भी बोलो, इनको वैसे एंटी हिंदू तरीके से भोसरी के नहीं दिखाया गया है। वहां पे ऋषभ शेट्टी एक जगह पे बोलता है, जबकि वो उनका यूनाइट होने का प्रोसेस चल रहा है, ऋषभ शेट्टी एज द लीडर ऑफ दोज ट्राइबल्स बोलता है कि अच्छा आप लोग इनको पूछते हैं, अब से हम भी इनकी पूजा करेंगे। इसके बाद ये लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा है, एंटी हिंदू प्रोपागेंडा है। क्या क्या बोल सकते हैं इसके बाद? गरीब है, या जो ट्राइबल शादी है, जनजातीय समाज है, उन पर कैसे वो अन्याय अत्याचार करने वाले शासक है, वो हिंदू शासक अन्याय अत्याचार करने वालों के रूप में उन्हें दिखाया था। और उसके बाद में कोई एक कोई विदेशी योद्धा, कोई ग्रीक था या रोमन था, पता नहीं, वो सेवियर के रूप में कैसे बनकर आ रहा है। ये मिन्नल मुरली के ओपनिंग सीन में ही जो एक स्टेज प्ले दिखाया जा रहा है गाँव की जतरा में, वो दिखाया था, ठीक है। इन तीनों ही फिल्मों में क्या आपको समानता दिखाई दे रही है? एआरएम, जिसमें टोविनो थॉमस मुख्य भूमिका में था, और उसके प्रोड्यूसर थे VXT, good argument. I have an equally good counter argument. VXT is pointing out that from Pratik Burada's side POV, it would be that there's already too many movies of Hindu Rajas committing atyachar, caste, slavery, etc. So why should Rishabh Shetty showcase the same? Rishabh Shetty should showcase, एक तो है कि कर्नाटका का वो हिस्ट्री हम कैसे डिपिक्ट करेंगे। कांतारा चैप्टर 1 कॉन्सेप्चुअलाइज होने के पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि कदम्बा डायनेस्टी का कोई डायनेस्टी भी है। एक तो वो एडुकेशन अवेयरनेस का चीज है। दूसरी बात है कि
यहाँ पे तो वो एंगल्स नहीं लिया जा रहा है कि कास्ट या फिर गरीब थे या फिर काले थे इसलिए मार दिया गया, नहीं। ये रैंडम एक हिंदू राजा है जो कि नाम का ही हिंदू है, डिवोट भी नहीं है, और एक बहुत खड़ा भरामी आदमी है। और स्पिरिचुअली स्पीकिंग, थियोलॉजिकली स्पीकिंग, वहां पे विलन भी है, वहां पे हीरो भी है। गुड और इवल स्पिरिचुअल रेल्म में दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है। विक्टिम्स जो है वो हिंदू है, वो प्रॉपरली हिंदू है। वो कोई मतलब अच्छा, हाँ पहले हिंदू थे, अब कोई मर गया घर में इसलिए मंदिर को जाके तोड़ दिया, मूर्ति तोड़ दिया, एथीस्ट बन गया, वैसा नहीं है। तो वो तो सेम सेम जॉनरा के फिल्म में आता ही नहीं है। Instead, it is able to achieve a whole lot of other things because of showing this evil king. और थर्ड पॉइंट इज के टाइम टू टाइम सबको याद रखना भी चाहिए कि डिवाउट हिंदू होने से भी हरामी होता है। ये भूल लेने से बहुत बड़ा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा। जतिन लाल उसके डायरेक्टर है, और उसके बाद में लोका की बात करें तो डोमिनिक अरुण करके कोई फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है, और कल्याणी प्रियदर्शन उसमें मुख्य भूमिका में है। दलकर सलमान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है लोका को, और मिन्नल मुरली में भी जितना मुझे याद है टोविनो थॉमस ही मुख्य भूमिका में थे। अब इन तीनों फिल्मों में क्या कॉमन बात आपको दिखाई देती है कि तो जो हिंदू राजा है वो कैसे दरिंदे हैं, मॉन्स्टर्स हैं, मंदिर कैसे अन्याय और अत्याचार के अड्डे हैं। एआरएम फिल्म की अगर मैं स्पेसिफिक प्रतीक बोराटे अभी देखो 24 मिनट का रिव्यू का 6.5 मिनट हो चुका है, अभी भी दूसरे फिल्मों का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। वो तुमको मैनिपुलेट करके एक कॉन्टेक्स्ट में लाना चाह रहा है जिसमें कि तुम नहीं हो। तुम कांतारा चैप्टर 1 से अलग एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तुम्हारा एक अलग रेस्पेक्ट है ऋषभ शेट्टी के लिए, ठीक है। अगर प्रतीक बोराटे डायरेक्ट आके बोल दिया कि नहीं नहीं पूरा लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है, तुम इमीडिएटली उसका चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे। इसलिए वो माहौल बना रहा है अभी तक, ये ठीक है। ये क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। 6.5 मिनट तक बोल रहा है कि दूसरे फिल्मों में कैसे ये भोसड़ी वाले चीजें हुए हैं, कांतारा में हुआ कि नहीं ये अभी तक घुसा ही नहीं उस टॉपिक में। अच्छा, यहाँ पे एक बढ़िया कमेंट है। धूमकेतु अग्निवान इज आस्किंग, इन शॉर्ट आउट ऑफ 100 हाउ मच यू गिव टू द मूवी फॉर एवरेज व्यूअर, नॉट एन आर्टिस्ट लाइक योर्स। फॉर एवरेज मूवी आई वुड गिव इट 110 on 100. For me it was 95 on 100 because of the comedy. I don't like all that much of comedy in such movies. I deserve to say it because I genuinely don't follow such hot shit comedy films, but the general public likes that kind of movies. Okay, so general public, I'm saying, even if they don't watch the second half, even if they have not watched Kantara, they don't know what Kantara 1 was all about, they have no knowledge of it, they don't know who Rishabh Shetty is, a random Indian layman, average Indian audience guy walks into Kantara chapter 1, they will call it a blockbuster, they'll try to make it a blockbuster, they will end up making it a blockbuster just because of the first half, because the first half is directed towards the general Indian audience as mass entertainer. कुछ भी चूतिया भूसी वाले मूवी को जो हम मास एंटरटेनमेंट बोलते फिरते हैं, ये बहुत बहुत बढ़िया एक्चुअल मास एंटरटेनर है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ है हमारे लिए, हम सबके लिए। फिल्म में मेटल का कोई कॉन्सेप्ट यूज हुआ है क्या, आयरन वर्सेस ब्रोंज एज? वो जिन लोगों को पता है हिस्टोरी ऑफ द गोड़ा उनको समझ में आएगा। वैसे मेटल से याद आया, मेटल रिफ वरारूपम में जो था उसका कुछ रिफ सेक्शंस आइदर री रिकॉर्ड किया गया हुआ है विथ बेटर गिटार्स और विथ बेटर टोन्स, या फिर अलग से उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है थिएटर रिलीज के लिए। यहाँ वैसे इस फिल्म में मिक्सेस आर आल्सो वे बेटर देन कांतारा 1, ऑल्दो I watched Kantara 1 in normal 2D. I watched both times Kantara chapter 1 in IMAX, so it may be for that reason. But वरारूपम जब फिर से आता है इस मूवी में, एक एक्स्ट्रा रिफ लेयर है, डिस्टॉर्शन हेवी मेटल गिटार रिफ लेयर है जो कि तुमको चेयर से हिला के रख देता है। वो आई थिंक री रिकॉर्डेड है या फिर एक बार फिर से उसको प्रोसेस किया गया है, सिर्फ वो रिफ टोन, वो बहुत बढ़िया है। At some point I agree with Pratik that there was no proof of any slavery. Yeah, slavery दिखाया गया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो बंगाल में आज के दिन भी होता है कि एक गुंडा है राजा का, वो गुंडा ने कुछ क्रिमिनल्स पकड़े हैं, पकड़ के उसको जेल में डाल सकते हैं। वो हेवी वर्क करने वाले पनिशमेंट होंगे तुम्हारे, तो वो ना करके वो किसी और को बोल रहा है कि अच्छा तुम इसको एम्प्लॉय करो, जो पैसा होगा वो कटमनी मैं खाऊंगा। अगर इसको स्लेवरी बोलना है तो ये स्लेवरी है, और ये स्लेवरी बंगाल में भी होता है। ये स्लेवरी अगर नहीं है, जो कि मुझे लगता है बाय द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ स्लेवरी,
This is not slavery. This is a very logical thing to do. Yeah, harsh labor. तो भाई अगर कोई गुंडा है, कोई अगेंस्ट धर्मा है, कोई भोसरी वाला है, क्या एंशिएंट इंडिया में कोई भोसरी वाला नहीं बन सकता है? ये क्या अजीब डिमांड है? कोई चूतिया नहीं होगा एंशिएंट इंडिया में। अर्थशास्त्र लिखा किसके लिए था भाई? अर्थशास्त्र क्या मुगलों के लिए लिखा गया था? इतने सारे लॉज, इतने सारे पनिशमेंट्स किन के लिए? सबके सब हिंदूज के लिए ही। यहाँ पर बात करूँ तो उसमें ये बात स्पेसिफिक दिखाई थी कि जो मंदिरों की वास्तुकला है या भगवान की जो मूर्तियां है, वो यहाँ के हिंदू राजा जो समाज का पिछड़ा वर्ग है या जो ट्राइबल्स है, जनजातीय समाज है, उन पर अत्याचार करके, उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको स्लेव बना करके, गुलाम बना करके कैसे ये वास्तुकला, इतने भव्य मंदिर वगैरह बनवाए हैं दरिंदे हिंदू राजाओं ने, ये एआरएम में दिखाया गया था। टोविनो थॉमस उसमें मुख्य भूमिका में था। सेम बात थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके लोका अच्छा 6 मिनट 54 सेकंड हो गया, अभी तक कांतारा चैप्टर 1 का डिस्कशन नहीं शुरू है, ठीक है। अच्छा, इंद्रजीत फदताड़े इज रिमाइंडिंग अ ग्रेट थिंग। कांतारा 1 में ये नहीं था, कांतारा 2 में हर गुली का रूप का एक अलग से डिस्क्रिप्शन भी दिया गया कि सामने खड़े होके एक आदमी बोल रहा है कि हाँ ये है राहु गुली का, ये है अग्नि गुली का। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। में भी वो वही दिखा रहे हैं, मिन्नल मुरली के ओपनिंग सीन में भी वही दिखाने का, वो सामाजिक वेक्सटी, ये सब प्रश्न मत उठाओ। मंदिर तो ऐसे ही बन जाते हैं। देखो, अगर किसी को लगता भी है कि तब के मंदिर बिना ही कोई चीखों के बन गए थे, ऐसे ही थोड़ा मतलब लुखिर भंडार आ गया जीपे करके बैंक अकाउंट में, सब सुबह से एकदम फिक्स टाइम में यूनियनाइज करके नौकरी करने निकल गए, इतना ही काम हुआ, फिर आराम से नहा धो के रिसेस में थोड़ा चाय लाटे खा के फिर मंदिर बना के घर पहुंच गए। अगर किसी को लगता भी है वैसा होता था, तो भाई ऐसा अब क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ लेबर के पावर्स के लिए। आज भी लेबर लॉज हटा दो, यूनियन बाजी हटा दो, तब के यूनियंस हो, तुम बोल सकते हो कि हाँ कास्ट यूनियंस ही थे एक तरह से, मगर एक्सपेक्टेशंस अलग थे, कास्ट के भी एक्सपेक्टेशंस अलग थे। व्हाट वाज एक्सेप्टेबल वाज डिफरेंट, व्हाट वाज एक्सेप्टेबल इन ऑफिसेज was a whole different ball game even until 5 years back. Why would you expect expectations from the employee side to be not insanely different 800 years back, you fucking idiots? क्या होगा? क्या बढ़िया संपर्क था एक पावरफुल आदमी और पावरलेस आदमी के बीच में। तो भाई मंदिर वैसे ही बनाए जाते थे। चित्रण उसी प्रकार का स्टेज प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कांतारा चैप्टर 1 भी इनसे कुछ अलग नहीं है, सेम नैरेटिव यहाँ पर भी बनाया जाए। No Dinakar, I could not watch Kalki because of its comedy. It's Kantara chapter 1 is not unwatchable. You'll have fun especially if you watched Kantara 1, exact same vibe है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही उतना ही कॉमेडी है, कुछ अलग नहीं है। कांतारा 1 का जो एंड है वो ही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए कांतारा चैप्टर 1 के घुसने से पहले ही हमको लग रहा है कि वो वाइब से फिल्म शुरू होना है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं करना चाहिए भी था। रहा है। देखिए, मैंने जब इसका ट्रेलर रिव्यू किया था तब मैंने एक बात कही थी कि चलो आप एक किसी शासक को अत्याचारी दिखा रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है कि कोई एक हिंदू राजा है उसको अत्याचारी दिखा दो। मैंने उस समय कंस का भी उदाहरण दिया था, कंस भी एक अत्याचारी राजा था, बराबर, जो वृंदावन के जो ग्वाल बाल है, हाँ, उनसे वो कर के रूप में मक्खन आदि सब कुछ वो ले लेता था। जो ग्वाल बाल थे उनके पास तो मक्खन तक नहीं रहता था खाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें ग्वाल बालों के साथ में No retroave, if those castes were employed in that, it may or may not be forced, but अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स है तो ही हम इसको स्लेवरी बोल सकते हैं, जिसका ज्यादा प्रमाण नहीं है। मगर जो फिल्म में दिखेगा कि ये फोर्सफुल है, क्यों वो मार खाएगा या फिर क्यों इतना कष्ट करके काम करेगा, वो फोर्स नहीं भी हो सकता है जस्ट एज वेल, बिकॉज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड वाज वेरी डिफरेंट 800 years बैक। जैसे कि इवन 5 years बैक एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस वर वेरी डिफरेंट 10 years बैक। आज तुम ऑफिस में बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते हो एज अ बॉस, जो कि तुम 7 साल पहले भी बोल सकते थे। तो भाई 800 साल पहले का क्या एक्सपेक्टेशंस होगा? वो एक्सपेक्टेशंस जो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर से है, वो एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे ही एक इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी फंक्शन कर रहा है। वहां पे एक सुबह अचानक उठ के कोई बोल नहीं सकता है कि ये तो मेरे साथ स्लेवरी हो रहा है। वो बाय डेफिनेशन स्लेवरी नहीं है। एवरीवनस अग्रीड टू इट एंड यस, थिंग्स हैव गॉटन बेटर टुडे, बट दैट डजंट मीन दैट वाज स्लेवरी देयरफॉर। ये क्या रेट्रोएक्टिवली डेफिनेशन चेंज करते फिरे? एकदम भी स्लेवरी नहीं है। जो कि मूवी में दिखाया गया है वो स्लेवरी नहीं है। खाना आदि चुराते थे उनको देने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण फिर कैसे कंस को दंड देते हैं ये हमने देखा हुआ है। तो किसी अत्याचारी शासक को दिखाने से कुछ समस्या नहीं है, परंतु जब आप सामाजिक चित्रण ही बिल्कुल उस प्रकार का करते हैं कि भाई यही हो रहा था। अभी कांतारा चैप्टर 1 की शुरुआत में ही
कदम के जो राजा है, कदम राजवंश के जो राजा है, वो कोई भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, ऐसा उल्लेख आता है। उस भव्य गौतम वरुण, बड़ी दुख की बात है मगर ब्रह्म कलशम का जो इंट्रो नादस्वरम है वो शायद नादस्वरम नहीं है। पिछली बार मुझे कन्नडिगा वालों ने बोला था कि वो नादस्वरम जैसा साउंड करता है वरारूपम का जो इंट्रो म्यूजिक है, वही एक इंस्ट्रूमेंट ब्रह्म कलशम के शुरू में भी यूज हुआ है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो नादस्वरम है नहीं मगर एग्जैक्टली नादस्वरम जैसा ही साउंड करता है। तो आई एम नॉट श्योर if it's Nadaswaram or not, but because of that melody that is not going out of my head, I can't get Kantara chapter 1 out of my head. See the movie. Did you see it already? I think Kantara chapter 1 is about 30-40% more awesome than Kantara 1. It's a shorted flute, probably used in Marathi music as well. मंदिर को बनवाने के लिए जो मूर्तियां आदि बनवाई जा रही है, जो वास्तुकला आदि है, उसके लिए जो कुलशेखर राजा और उसके जो पिता दिखाए हैं या उसके जो दादाजी आदि भी है, सभी के सभी बिल्कुल अत्याचारी दिखाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा था और बाद में कोई बेटा बिगड़ गया, शराबी, लालची, लोभी बन गया या उसमें कुछ गलत भाव आ गया, ऐसा नहीं। जो कुलशेखर है, गुलशन देवैया का कैरेक्टर, कुलशेखर ही नाम था ना उसका, हाँ कुलशेखर, उसके पिता हो, उसके दादा हो, सभी के सभी बिल्कुल इसी प्रकार के मॉन्स्टर्स वगैरह की तरह वो दिखा रहे हैं जो अन्य प्रतीक बुरादे यहाँ पे बैठ के व्हाट गांडू ये स्पॉयलर्स दे रहा है। शुरू में बोला कि स्पॉइलर नहीं दूंगा। क्या अजीब आदमी है। अत्याचार करते थे और जो बांग्रा का ये जो राज्य है वहां पर कांतारा के ये जो जनजातीय समाज के लोग हैं उन्हें आने की तक परमिशन नहीं थी। तो इतना चरम पर यहाँ पर भारत में सामाजिक भेदभाव इतना चरम पर था, हिंदू राजा इतने दरिंदे थे। नहीं, अर्थशास्त्र गांड मराने के लिए लिखा गया था। कोई लॉ ब्रेक नहीं करता था, कोई क्रिमिनल नहीं था। और यहाँ की जो महान वास्तुकला है, हमारे जो मंदिर है, उनको बनवाने के लिए स्लेव्स बनाते थे ये हिंदू राजा। हाँ, स्लेव्स बनाते थे, जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनको गुलाम बना। हाँ, एक बात था, गुलशन नाम का जो लड़के ने वो विलेनस राजा का रोल किया है, भाई उसका हर एक फ्रेम, अचानक क्यों ऋषभ शेट्टी का क्या प्यार है गुलशन के साथ अलग से मुझे पता नहीं है। हर जो फ्रेम में गुलशन आ रहा है तुमको लगेगा कि अरे ये सीन तो फ्रेम कहीं पे देखा है कोई क्लासिकल पेंटिंग में। हर एक फ्रेम जहां पे गुलशन आ रहा है भाई अलग वाइब है, बहुत मतलब है, हिस्टोरिकली एक्यूरेट वाइब है। करके बंदी बना करके चाबुक से फटके वगैरह मार मार कर उनको एक्सप्लॉइट कर करके ये मंदिरों की वास्तुकला बनवाई जाती है। हाँ, वो एक्सप्लॉइटेशन आज के डेफिनेशन से है प्रतीक जी। उस टाइम पे वो एक्सप्लॉइटेशन होता भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजिकली एक्यूरेट भी है। और अगर तब वो होता तो अब क्या करे, क्या दिखाए? तब दिखाए कि वो ऋषभ शेट्टी पहले एचआर को फोन करके बोलता था नहीं देखिए कादम्बा वाले कितने भोसड़ी वाले हैं, कैसे ये, हाउ कैन ही टॉक टू मी लाइक दैट, ये बोलेगा वो। भगवान के मंदिर बनवाए जाते थे और ये कोई एक आध सीन में दिखाया ऐसी बात नहीं है, पूरी फिल्म में ही ये नैरेटिव चल रहा है। फर्स्ट हाफ में तो पूरा का पूरा यही वो दिखा रहे हैं, सेकंड हाफ में जाने के बाद में भी इसी प्रकार के डायलॉग्स आपको बार बार विजुअली भी यही बातें सब वो दिखाते जा रहे हैं। और सामाजिक भेदभाव के लिए कैसे कैसे वो डायलॉग्स मैं आपको थोड़ा सा कुछ डायलॉग्स मैंने लिख करके रखे थे, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। पकड़े गए तो दोबारा अपना दास बना लेंगे, गलती से भी पानी को छू लिया तो काट डालूंगा। अच्छा, दास बना लेंगे तो स्लेवरी याद है ना। और बाकी समय बोलते फिरते कि हाँ कहीं पे दास वर्ड हो सकता है मगर वो स्लेवरी नहीं है, इंडिया में कभी स्लेवरी नहीं था। ये लोग ही बोलते हैं कि दास वर्ड का मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अरे तुमको क्या, तुम संस्कृत में फ्लुएंट हो ब्रो, डू यू इवन नो संस्कृत, डू यू नो दैट संस्कृत, डू यू नो दैट पर्टिकुलर गाइस संस्कृत, डू यू नो संस्कृत फ्रॉम दैट एरा। अगर ये नहीं जानते हो तो टेक इट फ्रॉम मी, दास इज नॉट स्लेवरी। यहाँ पे ऋषभ शेट्टी अगर हिंदी ट्रांसलेशन में भी दास बोल रहा है तो ये अचानक स्लेवरी कैसे हो गया? जो डिपिक्ट किया गया है काम वो स्लेवरी नहीं है। अच्छा, देखते हैं और क्या क्रिटिसिज्म है। मेरे दिमाग में सिर्फ ब्रह्म कलशम का इंट्रो नादस्वरम ही बजे जा रहा है, उस बैकग्राउंड स्कोर से मैं अब गुस्सा हो रहा हूँ प्रतीक बड़ौदे के ऊपर। सामाजिक भेदभाव के लिए कैसे कैसे वो डायलॉग्स मैं आपको थोड़ा सा कुछ डायलॉग्स मैंने लिख करके रखे थे, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। पकड़े गए तो दोबारा अपना दास बना लेंगे, गलती से भी पानी को छू लिया तो काट डालूंगा। अनटचेबिलिटी कहीं पे नहीं था भाई। वाह वाह वाह, ये क्या डिमांड है? और छोड़ो वर्ण व्यवस्था, छोड़ो, ऐसा कौन से देश का कौन सा राजा होगा जो कि उस अपने राज्य के जंगल में रहने वाले लोगों को बोलेगा हाँ हाँ बढ़िया आजा बैठ जा एक साथ बियर पीते हैं। ऐसा मनुष्य के इतिहास में कोई राजा नहीं हुआ होगा। अगर वो डिपिक्ट किया गया है तो क्या हुआ? अच्छा, अगर वो कास्टिज्म को फिर से बढ़ावा देना है तो भाई वैसे भी इन जैसे राइट विंगर्स को क्या पता है कि कास्टिज्म एग्जैक्टली क्या था। इनको तो लगता है हाँ कुछ बुरा हुआ होगा, अब उसके बारे में अभी आज के हिंदुओं को नहीं ज्यादा गाली देते हैं। इतना ही तो है आर्ग्यूमेंट, या फिर अलग तरह का आर्ग्यूमेंट है कि कास्टिज्म तो बढ़िया था। तो वैसे भी इनको कास्ट के बारे में कुछ नहीं पता।
तो अब एक राजा एक ट्राइबल के साथ थोड़ा क्या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर लिया, इसके लिए ये लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा मूवी बन गया। वो डिपिक्ट नहीं किया जाएगा कि राजा ऐसा होता था। क्या हिडन डिमांड है। नए दासों को लाए हैं, अरबियों को बेच दो। मतलब ये जो राजा है कुलशेखर आदि, वो कैसे दास बनाते थे, स्लेव्स बनाते थे, मंदिर आदि बनवाने के लिए भी स्लेव्स बनाते थे, और अरबियों को या जो भी विदेशी आ रहे हैं उनको दास बेचने के लिए ये मदद करते थे, स्लेव्स आदि बना रहे हैं, ये वो बताया जा किसी ने कभी नहीं किया। रहा है। इसके साथ में ही पैरों के नीचे रहने वाले Yes, that is of course not slavery. Half the time dases are the phrase das is the epithet das is used after some god, so you're dasa of that particular god only. लोग आज उनके बराबर व्यापार कर रहे हैं, ये उनसे सहन नहीं हुआ। तो कैसे ये हिंदू राजा जो है वो उन्होंने हमेशा से ये जो जनजातीय समाज उनको पैरों के नीचे कैसे कुचल करके रखा था, ये भी बताया जा रहा है। देखो ये कितना लेफ्टिस्ट ट्रेनिंग है, समझ रहे हो आनंद VXT? See, he is using a leftist fucking lens to understand society of that era, because he has no discourse, he has no lexicon other than leftist discourse. So he is thinking क्योंकि ये डिपिक्ट कर दिया इसका मतलब ये लेफ्टिस्ट प्रोपागेंडा है, जबकि सत्य ये है कि हाँ वो वैसा होता था, वो तब होता था, इसका मतलब नहीं है कि अब लेफ्टिज्म करके इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसका सोल्यूशन हुआ है वैसे ही, फ्री मार्केट की वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से हुआ है। क्या ये बार बार अत्याचार एक्सप्लॉयटेशन दिखा दिया, वो मतलब क्या क्या राजा होगा आपके पूरा टाइम सिर्फ चैरिटी करता फिरता है और कोई काम धंधा नहीं है उसको। ऐसा घटिया राजाओं का जो डिपिक्शन इंडियन राइट विंग के अंदर हुआ है, इसी का फल है ये कि अब कहीं पे कोई हरामी राजा दिख गया तो वो एंटी हिंदू बन गया। वाले लोग आज उनके बराबर व्यापार कर रहे हैं, ये उनसे सहन नहीं हुआ। तो कैसे ये हिंदू राजा जो है वो उन्होंने हमेशा से ये जो जनजातीय समाज उनको पैरों के नीचे कैसे कुचल करके रखा था, ये भी तो भाई सिविलाइजेशन चलाते थे राजा, जो सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा लेंस का प्रॉब्लम है कि हर एक रेल्म में, हर एक डोमेन में, हर एक लेयर में सेम चीजें होते हैं। कास्टिज्म बोलो, इकोनॉमिक्स बोलो, पॉलिटिक्स बोलो। तो अगर हम सिविलाइजेशन आज जो मीन करते हैं तो उसके वजह से हम इन राजाओं के बारे में बात करते हैं, तो यस उनसे ये ट्राइबल लोग ऑब्वियसली पिछड़े थे, उनके पास रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज कम हो गए थे। मगर क्या उन ट्राइबल्स के अंदर कोई राइवलरी नहीं था, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं था, इंटरनल कास्ट, रिचुअल प्योरिटी, रिचुअल पोल्यूशन कुछ नहीं था? उनमें भी गरीब, कम गरीब, ज्यादा गरीब तो थे, तो वो भी तो एक्सप्लॉयटेशन था। तो प्रतीक बोला था, देखो बैठ के लेफ्टिस्ट डेफिनेशन दे रहा है, वो दिखाना लेफ्टिस्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है, वही होता था, वो नॉर्मल ही था। उसको लेके हम गिल्ट में क्यों पड़ जाए? कोई कभी हरामी नहीं होगा क्यों? ये क्या अजीब डिमांड है। राजा जो है वो उन्होंने हमेशा से ये जो जनजातीय समाज उनको पैरों के नीचे कैसे कुचल करके रखा था, ये भी बताया जा रहा है। और आगे ये कह रहे हैं कि एक कांतारा जो मतलब ऋषभ शेट्टी का ही पात्र है, आगे वो ये कह रहा है कि एक जगह पर आपकी तरह इंसानों का व्यापार नहीं करते हैं। मतलब ये राजा जो है वो इंसानों को व्यापार अच्छा, ये डायलॉग एग्जैजुरेशन में था, ठीक है, ये लिटरल सिचुएशन नहीं था, क्योंकि ऋषभ शेट्टी वाज पोकिंग अ लिटिल, वो थोड़ा टॉन्ट था। थे, स्लेव्स आदि बनाते थे, ये वो बता रहे हैं। वैसे भी अगर वो बोला मीन भी किया गया है, तो पहली बात मुझे ये कोई गारंटी दो कि जीरो स्लेवरी का हिस्ट्री है हमारा। स्लेवरी एडजेसेंट भी कुछ कभी भी नहीं हुआ था। हमारे छुए को बांग्रा वाले नहीं छूते, अब हम पूरे बांग्रा को छुएंगे। हम जिसे अनटचेबिलिटी नहीं होता था, कभी भी नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू प्रतीक बोरादे। छूते हैं ये उसे काट देते हैं। हमारे लोगों के खून से अपना राज बना के, हमारे मसालों से अपना खजाना भर के फिर समानता की बातें कर रहे हो। वो एक विलेन खराब आदमी था, जानते हो? कितना घटिया फिल्म है, एक विलेन दिखा दिया भोसरी के। फिल्म में सब कोई अच्छे क्यों नहीं है? This was a great argument Arnab Goswami once made to some crackpot who was demanding more censorship before BJP came to power, of course. So Arnab Goswami at one point said, "What kind of a man do you think James Bond is? Why are you opposing a particular kind of, let's say, adult action depicted through the hands of James Bond, because he's that kind of a person?" यही तो चीज एनिमल को लेकर भी किसी के दिमाग में नहीं घुसा। एनिमल में कहाँ बोला जा रहा है कि देखो कितना बढ़िया लौंडा है, वो दिखाया जा रहा है कि वो, हाँ, वो गांडू है, वो इडियट है बहुत कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत मतलब दिल में आग वाला भी इंसान है, मगर है एक रैंडम एक आदमी है।
तुमको चूतिए हीरो देख कर और हीरो और विलन वो माँ बाप शादी होने नहीं दे रहे, ये ऐसा कहानी देख देख के 30 साल से सबका तुम्हारा दिमाग का भोसड़ा बन चुका है, इसलिए तुम तुम्हारा घटिया दिमाग ऐसे बढ़िया फिल्म्स में भी घुसा दोगे? नहीं घुसाओ, अनटचेबिलिटी मेंटेन करो भाई, तुम बहुत बड़े बड़े आदमी हो, ऐसे ऐसे अनटचेबल मूवीज को अब तुम बख्श दो। मंदिर में अनुष्ठान के बाद गुलामों को छुड़वाने का भी एक सीन दिखाया गया है। मंदिर में अनुष्ठान आदि करने के बाद में फिर वो गुलामों को कैसे छुड़वा रहे हैं, इस प्रकार का भी एक सीन है। तो कुल मिलाकर ऐसे कई सारे संवाद, डायलॉग्स पूरी फिल्म में सुनने को हमें मिलते हैं। तो कुल मिलाकर सामाजिक चित्रण ऐसा ही है कि इस देश की जो महान ऐसी जो वास्तुकला है, इतने भव्य जो हमारे मंदिर आज भी हम देख रहे हैं, जो मुगलों ने खंडित कर दिए थे, पुर्तगीजों ने खंडित कर दिए थे, विदेशी आक्रांताओं ने खंडित कर दिए थे, उन महान वास्तुकला की तरफ इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि भाई ये अन्याय और अत्याचार के अड्डे रहे हैं। वो लेफ्टिस्ट वैसे भी बोलते हैं, और अगर किसी को लगता है कि भाई एचआर से फोन करके आराम से बहुत बहुत सैलरी नेगोशिएट करके हर दिन एक मिनट रुको, शिट, हाँ, हर दिन सैलरी नेगोशिएट होता था भाई, इसके लिए कास्ट थे। अगर एक बात बताओ, अगर कोई अत्याचारी राजा नहीं था तो कास्ट का क्या फंक्शन था एग्जैक्टली? कास्ट गिल्ड क्यों थे? कास्ट क्यों चाहिए था किसी को? हर वक्त तो बोलते फिरते हो ना कि इंडिविजुअलिटी खराब है, ज्यादा इंडिविजुअलिटी खराब है, एटॉमिक इंडिविजुअलिटी खराब है, तो थोड़ा बहुत कास्ट वाइब होना चाहिए सोसाइटी में। क्यों होना चाहिए? किससे बचने के लिए? तब के राजा से बचने के लिए ही ना। इस्लामिक राजा से पहले अगर सब राजा बढ़िया क्यूट से इंसान थे तो एक यूनाइटेड नेगोशिएशन फोर्स क्यों जरूरत पड़ा? इसीलिए जरूरत पड़ा ताकि अत्याचार ना हो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उस सिस्टम में भी करप्शन है, कि अगर यूनाइटेड हो भी फिर भी तुम्हारा एक्सपेक्टेशन इतना कम है क्योंकि तुमने एचआर नाम का कोई पोजीशन का वर्ड नहीं सुना है, इसीलिए वहां पे काइंड ऑफ फोर्सफुली ही ऐसी मंदिर बनाए जा रहे हैं जो कि आज के लेबर लॉज में बनाए नहीं जा सकते, या फिर टेक्नोलॉजी बढ़िया है इसलिए बनाया जा सकता है। तब जो वर्किंग आवर्स था, जितना काम करना पड़ा उन दिनों के लेबरर्स को, वो आज नहीं हो सकता है। उन दिनों के लेबरर्स के वर्क एथिक या फिर मैंडेटरी वर्किंग आवर्स, वो सब कोई भी हिस्टोरियन से उठा के देख लो, वो आज के दिन में अलाउड पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कंक्लूड करें? प्रतीक बुरादेव और सब गांडू लेफ्टिस्ट की तरह कि अच्छा ये सत्य है तो फिर ये तो लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है कि अच्छा तो सारे राजा एक्सप्लॉयटेटिव थे। यहाँ पे जाके लेफ्टिस्ट बोल रहा है कि देखो देयरफॉर एंशिएंट इंडियन किंग्स वर एसोल्स हु वर एक्सप्लॉयटर्स। प्रतीक बुरादे गांडू मान रहा है वो सेम प्रेमिस, सेम आरएसएस का प्रॉब्लम, लेफ्टिस्ट प्रेमिस अग्री अपॉन कर रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि दिखाओ मत, जबकि वो अगर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चूंकि 800 साल पहले का कहानी है, तब के लेबर लॉज अलग होंगे ही। तुमने इडनिस्ट एक फ्लफी नाइस परफेक्शन का एटमॉस्फेयर और हिस्ट्री बेचा है दूसरे राइट विंगर्स को, क्योंकि ठीक है जस्टिफाइबली सो मे बी, क्योंकि तुम काउंटर कर रहे थे ऐसे चूतियों को जो कि बोल रहे थे कि सब कुछ खराब था हमारे एंशिएंट पास्ट में, तो उसका तुमने लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग करके रिस्पांस निकाला कि सब कुछ बढ़िया था। सब कुछ बढ़िया था तो अर्थशास्त्र किसके लिए लिखा गया? कास्ट किसके लिए पैदा हुए? ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। ये अगर कोई एक्सपेक्टेशन मान रहा है तो वो लेफ्टिस्ट प्रेमिस, लेफ्टिस्ट लेंस के साथ पूरा तरह से अग्री कर रहा है, लेफ्टिस्ट प्रेमिसेस को अग्री कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि देखो ये लेफ्टिस्ट दिखा दिया इसलिए मत मूवी में मत दिखाओ। ऋषभ शेट्टी अब लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा है। नहीं, थैंकफुली ऋषभ शेट्टी इज वे मोर इंटेलिजेंट देन दिस क्रैप। अत्याचारी हिंदू शासकों ने समाज के पिछड़े वर्ग या जनजातीय समाज के लोगों को गुलाम बना करके उनसे जबरदस्ती चाबुक के फटके चाबुक से मार कर ये भव्य मंदिर बनवाए हैं। यही भाव उसके मंदिर में आएगा ना। कर्नाटका में मैं गया था ट्रिप पर, इतने सारे भव्य मंदिर है। सोचिए आगे से कोई भी उन भव्य मंदिरों की तरफ देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि ये अन्याय और अत्याचार के अड्डे हैं। कदम मेरे दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि हाँ यही नॉर्मल था, और कैसे बनेगा? अगर किसी को आता है वो लेफ्टिस्ट है, वो उसको पता भी नहीं है कि वो लेफ्टिस्ट है, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट लेंसेस, लेफ्टिस्ट प्रेमिसेस सब कुछ मान रहा है। राजवंश हो या जो भी राजवंश हो, उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों को गुलाम बनाकर उनको उन पर अन्याय अत्याचार करके उन्हें एक्सप्लॉइट करके फिर ये भव्य मंदिर बनवाए हैं। यही तो बात मन में आएगी ना। और देखिए ये सारा का सारा मिशनरियों का नैरेटिव रहा है। हाँ, अगर हम सही इतिहास में देखें तो अगर ट्राइबल्स की हम बात करें तो भाई अलग अलग जो हमारे जनजातीय समाज है वो तो विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़े हैं हिंदू राजाओं के साथ में। जैसे कि वीर हमीर जी गोहिल जी, उनके साथ में जो भील समाज के योद्धा थे वेगड़ा जी, वीर बलिदानी वेगड़ा जी भील उनका नाम है, भील समाज के योद्धा थे। और ये देखो, ये होता है एक ही पब्लिशर और एक ही तरह के स्कॉलर्स पढ़ने से ऐसा दिमाग होता है। उनके सभी भील योद्धाओं ने
वीर हमीरजी गोहिल जी के साथ में मिल करके सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वालों के विरुद्ध युद्ध किया था, अपना बलिदान दिया था वीर वेगड़ाजी भील जी ने। उनका स्मारक, वेगड़ाजी भील जी का स्मारक आज भी सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में है। तो इतना बड़ा भेदभाव था तो वो स्मारक कैसे है? उन्होंने अच्छा अच्छा, तो भाई उसके पहले और उसके बाद भी कभी भी भेदभाव कभी नहीं हुआ, और इन दोनों ग्रुप्स के एंसेस्ट्री में भी कभी उन दोनों में कोई बवाल नहीं हुआ। मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान कैसे दिया? और केवल वीर हमीरजी गोहिल जी की बात नहीं है, महाराणा प्रताप जी के साथ में भी भील समाज के योद्धा लड़े थे। केवल यही नहीं, भगवान बिरसा मुंडा जी जो जनजातीय समाज से ही थे, आज जीवन मिशनरियों के विरुद्ध लड़े, आज जीवन। और फिर ब्रिटिशों ने जहर देकर के उनकी हत्या की। मिशनरीज इतने ज्यादा उनसे डरे हुए थे, भगवान बिरसा मुंडा जी से। तो पहले 6.5 मिनट बात किया गया कि दूसरे मूवीज में कैसे लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा होता है, और अभी 2-3 मिनट हो गया मिशनरीज क्या क्या करते हैं ये डिस्कस हो रहा है। मूवी का बात नहीं हो रहा है, मूवी का बात जो भी किया वो उसमें स्पॉइलर दे दिया। वैसे तो अनगिनत उदाहरण हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं। कुमाराम भीम जी, हाँ तो भाई अनगिनत ऑपोजिट के एग्जाम्पल भी मिलेंगे, बड़ा देश है क्या करोगे। आरआरआर फिल्म में आपने देखा ही होगा, वे भी तो जनजातीय समाज से ही थे ना। तो एक तरफ सही इतिहास अगर हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है, दूसरी तरफ ये जो फिक्शनलाइज की हुई फिल्म है जिसे हिस्टोरिकल फिक्शन कहा गया है, उसमें क्या चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये फिल्म देखने के बाद में आने वाली जो जनरेशन है उनके मन में हमारे ही मंदिरों के प्रति क्या भाव जगेगा। आने वाले समय में ये फिल्म देख करके कोई भी व्यक्ति मंदिरों की तरफ देखता है तो उसके मन में क्या आएगा कि ये अन्याय, विन्यास जो कमेंट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्ट 2 सेकंड हाफ देखा नहीं क्या? सेकंड हाफ देख के ये सब कैसे कोई बोल सकता है? ये अगर फर्स्ट हाफ में तुम बाहर आ जाओ थिएटर के ये सोच के कि अरे ये तो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का हिंदी बना दिया, कन्नड़ा बना दिया, तब ठीक है। पार्ट 2 में खुद को प्रमाण करने का, प्रूफ करने का ऋषभ शेट्टी ने कुछ जगह बाकी नहीं रखा है। उसके बाद अगर कोई ये सब बोल रहा है, इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अभी। अड्डे हैं। ये हिंदू राजाओं ने चाबुक के फटके मार मार करके फिर ये अत्याचार करके ये मंदिरों की वास्तुकला खड़ी की हुई है। यही तो भाव मन में आएगा ना। अब चलो जो मिशनरियों के एजेंडा से ब्रेन वॉश्ड लोग हैं, चलो हो सकता है कि वो अपने ब्रेन वॉश होने के कारण ऐसी फिल्में बना रहे हैं। ऋषभ शेट्टी मिशनरी से ब्रेन वॉश्ड आदमी है अकॉर्डिंग टू आई गेस। पर दुख तब होता है कि जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं वो लोग ऐसी फिल्में जब बनाते हैं तब दुख होता है। अब कोई राष्ट्रवादी मतलब इडियट होगा ऐसा तो नहीं डिमांड है ना। अब ये इंटेलिजेंट राष्ट्रवादी है तब क्या किया जाए। कहेगा कि भाई इसमें शिव जी की भक्ति तो दिखाई है ना। देखिए शिव जी की भक्ति जो दिखाई है, या फिर एक दैत्य वगैरह भी जो दिखा रहे हैं आगे जाकर के, कोई भी एक व्यक्ति, एक बच्चा समझ लीजिए, या आज की जनरेशन जो अपने आप को बड़ा रैशनल समझती है या फिर बड़ा लॉजिकली सोचना बिलीव करती है कि भाई हमको तो साइंटिफिक सब चीजों का प्रूफ चाहिए, हम तो बड़ा रैशनल होकर के सोचने वाले लोग हैं, वो स्वाभाविक सी बात है वो यही सोचेगा कि भाई ये तो मैथोलॉजी है। ठीक है, तो ठीक है, एक हिस्टोरिकल फिक्शन, वो कुछ मैथोलॉजी वगैरह दिखा रहे हैं, दैत्य वगैरह थोड़ी ना होते हैं सच में, तो वो तो उस बात को कल्पना समझ करके त्याग देगा, ठीक है ना। परंतु मंदिरों के बारे में जो बात दिखाई ना वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी हमेशा के लिए। तो ये मंदिर तो आंखों से दिख रहे हैं ना, मंदिरों की वास्तुकला, इतने भव्य मंदिर, इतने भव्य मूर्तियां, इतनी महान वास्तुकला विश्व में कहीं दूसरी तरफ देखने को नहीं मिलती है। अगेन 2 काउंटर आर्गुमेंट्स। एक के ये तो 80 साल से लेफ्टिस्ट बोल चुके हैं, क्या काउंटर उखाड़ पाए आजकल आज तक कोई? ठीक है, काउंटर अब आया है, बढ़िया है। एक तरफ ने बोला है कि ना नहीं सब तो बढ़िया ही था। रियलिटी जो है वो है कि हाँ वैसा ही होता था, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल क्वालिटी वैसा ही था। आज मैं अभी आई एम राइट नाउ मोर कंफर्टेबली चिलिंग इन दिस चेयर देन चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी महाराज वाज एवर फॉर अ सिंगल डे इन हिज लाइफ। तो क्या वो अत्याचारित थे? चंद्रगुप्त मौर्य पे शोषण हो रहा था कैपिटलिज्म का, इसलिए वो मुझसे ज्यादा अनकंफर्टेबली जिंदगी बिताए। अपग्रेड हुआ है भाई, जिंदगी बेहतर हुआ है, वो दिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सत्य है। सत्य दिखाना कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सब लोग अच्छे नहीं थे। जो एक्सप्लॉइटेटिव लग रहा है तुमको वो भी सिर्फ आज के लेफ्टिस्ट लेंस की वजह से, वो एक्सप्लॉइटेटिव था ही नहीं। दैट वाज जस्ट अ रन ऑफ द मिल नॉर्मल डे। हाँ, उसके बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? वो उसको फिक्शन नहीं समझेगा क्योंकि वो देख रहा है अपनी इन्हीं आंखों से मंदिरों की वास्तुकला उसे आज दिखाई दे रही है, पर उन वास्तुकला के इतिहास के बारे में उसके दिमाग में क्या बात बैठेगी कि ये अन्याय और अत्याचार करके खड़े किए गए हैं और ये सारा का सारा मिशनरियों का एजेंडा है। ब्रिटिशों ने शुरुआत में ये नैरेटिव चलाया, उसके बाद में वामपंथियों ने भी इसी नैरेटिव को चलाया। आज भी मिशनरियों के एजेंडा को प्रमोट करने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं वो इन्हीं बातों को प्रमोट करते हैं। सच्चा नो सुनील नायक, इट्स नॉट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, nothing the word all cannot really apply to any context in Indian history because of such a vast and diverse nature of our society. Secondly, जो दिखाया गया है
वो स्लेवरी है किस नजरिए से? वो कास्ट है वो काम करने के लिए। वो कास्ट कहीं पे अगर अच्छा सैलरी नहीं, फीस नहीं मिलता था तो उठ के चले जाते थे इमीडिएटली। ऐसा हमने खुद लेजिट क्रेडेंशियल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशलिस्ट के जर्नल आर्टिकल से पढ़े हैं। मैं प्रतीक बोरादे से सोशियोलॉजी नहीं सीखता हूँ। वहां पे मुझे डिफेंस मिलता है इन सब चीजों का। वो स्लेवरी ही नहीं है तो बिल्ट ऑन द बैक्स ऑफ स्लेवरी ये सब सारे मंदिर, ऐसा आर्ग्यूमेंट कहां से आएगा? क्या हमें पढ़ने को मिलती है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने, मिशनरियों ने अफ्रीकन कंट्रीज को स्लेव बनाया, तो वहां से गुलाम बनाने के बाद में वहां से स्लेव्स वो लेकर के जाते थे। और यूरोपियन कंट्रीज में हमें पढ़ने को मिलता है कि उनसे कई सारे चर्चेस वगैरह भी बनवाए गए थे, उन स्लेव्स से, अफ्रीकन कंट्रीज से जो स्लेव्स लेकर के गए थे। ये मिशनरियों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और स्लेव्स तो बनाया था उन्होंने। अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में तो हमें यहां तक पढ़ने को मिलता है, वहां के ही एक पूर्व राष्ट्रपति ने यह बात कही हुई है कि जब यहां पर मिशनरीज आए अफ्रीकन कंट्रीज में, यहां की भूमि पर, तो हमारे पास जमीन थी और उनके हाथ में बाइबल था। उन्होंने हमें प्रे करने के लिए कहा, हमने आंखें बंद कर प्रे की। जब हमने आंखें खोली तो हमारे हाथ में बाइबल थी और हमारी जमीनें उनके पास में थी। ये तो इतिहास है। और वहां से जो स्लेव्स बना करके लेकर के गए थे, वहां फिर उन स्लेव्स से क्या क्या नहीं करवाया। हाँ, तो ये एंटी क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा है या सत्य है? अगर ये सत्य है और काइंड ऑफ एंटी क्रिश्चियन वाइब्स दे रहा है, क्या तुमको एज अ टॉलरेंट एक्सेप्टिंग हिंदू तुमको ये करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए? क्यों तुम खाली पीली एंटी क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा में घुस रहे हो भाई? कितने अत्याचार किए। ये तो पूरा स्लेवरी का इतिहास है, मिशनरियों का, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स का। यहां तक कि जो हाइपेशिया के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है ना, महान ग्रीक गणितज्ञ थी, उसको जब मारा गया मिशनरियों के द्वारा, तो ग्रीक, हाँ, अफ्रीकन स्लेव्स को कौन पकड़ के बेच रहा था? खुद तो बेच रहे थे। वो किसी और ट्राइब के स्लेव होते, उसके बदले में जहाज से चल के अमेरिका पहुंच गए। इसीलिए तो वो अमेरिका वाज बिल्ट ऑन द बैक्स ऑफ स्लेवरी, वो स्टेटमेंट मुझे इतना गुस्सा दिलाता है। पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट भरा पड़ा है स्लेव से, वो कुछ बिल्ट ऑन द बैक्स ऑफ नहीं कर पाए। अमेरिका जाके अचानक स्लेवरी से देश बन गया। वाह वाह वाह, क्या मैजिक है। सभ्यता की ही जो एक मंदिर था, प्राचीन ग्रीक सभ्यता, उनके ही मंदिर के अंदर हाइपेशिया को नग्न करके मारा गया था मिशनरियों के द्वारा। और बाद में उसी ग्रीक सभ्यता के मंदिर को चर्च में कन्वर्ट किया गया था। नहीं, रेट्रोवेव ये आर्गुमेंट अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन व्यूअर्स जो है, उनको फिल्म देख के ये सब इतिहास नहीं जानना है। उनको पता है कि हाँ, पास्ट में बहुत बढ़िया लोग थे, बहुत हरामी लोग भी थे, ये सबको पता है, एक्सेप्ट प्रोपेगेंडिस्ट्स, एक्सेप्ट आइडियोलॉग्स, एक्सेप्ट कल्ट फॉलोअर्स, ओके। और जनरल मासेस वैसे भी इसको 1000 करोड़ देने वाले हैं। कोई प्रतीक बुरादे का फिल्म रिव्यू सुन के इसको 1000 से खींच के 300 करोड़ पे कोई नहीं ला पाएगा। वो इंडियन ऑडियंस ही फर्स्ट हाफ देख के इसको पैसे भी देंगे, सेकंड हाफ देख के पूरा श्रद्धा भी जाग जाएगा। एंड रिजल्ट होगा एक हाईली मेरिटोक्रेटिक, एक्सीलेंस ओरिएंटेड, ग्रेट इंडिक कल्चरल फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री। एंड रिजल्ट वही होना है। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये तो तथ्य है। तो ये मिशनरियों ने किया था। फिर वो जब यहाँ पर आए, यहाँ पर चाहे वो पुर्तगीज हो, डच हो, ब्रिटिश हो, आई अग्री, हाँ, आई अग्री हियर। आई डोंट लाइक दैट स्टफ, बट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लाइक दैट स्टफ, तो अब भुगतो। मुगल हो, जो भी विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए हिंदुओं को समूल नाश करने के उद्देश्य से, उन्होंने यहाँ पर फिर ये नैरेटिव चलाए, हमें आसपास आपस में बांटने के लिए, हमें जात पात में लड़वाने के लिए, साउथ और नॉर्थ में बांटने के लिए उन्होंने ये नैरेटिव यहाँ पर चलाया कि यहाँ के मंदिर अन्याय अत्याचार से बनवाए गए हैं। ना, यहाँ की जितनी भी वास्तुकला है, महान जो। बहुत बढ़िया। ऋषभ शेट्टी को क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू गाइज? डू यू थिंक ऋषभ शेट्टी इज दैट काइंड ऑफ अ मैन जो ये सब बिलीव करके मूवी बनाया है, दिखाने के लिए, खोद के इसी इतिहास का सब डार्क पेजेस दिखाएगा कि देखो कितना स्लेवरी होता था, स्लेवरी के बैक्स पे हम मंदिर बनाया करते थे। ये ऋषभ शेट्टी का जिंदगी का गोल है? तुम किसी को लगता है आज के डेट में? समवन प्लीज टेल हिम अबाउट कोणार्क एंड धर्मपदम। नहीं, वो तो ब्रिटिश ने आके गलती कर दिया। Yes, there was that slavery was done by, yes. स्लाविक रीजन नाम ही कैसे हुआ? अरे एक हिस्टोरी ऑफ द गोड़ा, थॉमस वेल के एक बुक पे एक एग्जांपल है कि कोई रोमन राजा के कोर्ट में बोला जा रहा है कि अगर स्लेव मिले तो मिडिल ईस्ट से उठाओ, ये व्हाइट स्लेव्स कोई काम के नहीं है, व्हाइट स्लेव्स कम लाओ। स्लेवरी भाई हर जगह पे था किसी ना किसी सेंस में। वास्तुकला हमें देखने को मिलती है, वो कोई अन्याय और अत्याचार करके नहीं बनवाए गए हैं। महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में पूरे देश भर में अभी हम चर्चा वगैरह देखते हैं, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट आपने देखे होंगे, जो पूरे के पूरे एक पत्थर को काट करके बनाया गया है, ऊपर से शुरू करके नीचे तक। वो अन्याय अत्याचार करके बनवाया था हिंदू राजाओं ने? नहीं, कैसे बना था? अन्याय अत्याचार अगर तुम उसको बोलो
तो वो अन्याय अत्याचार है। मेरे लेक्सिकॉन में, मेरे ट्रूली नॉन लेफ्टिस्ट लेंस में वो अत्याचार है नहीं। तुम अगर उसे अत्याचार मानो तो तुम लेफ्टिस्ट लेंस में विश्वास कर रहे हो और उसके लिए ऋषभ शेट्टी को गाली दे रहे हो। वो अत्याचार नहीं था, वो आज के कॉन्टेक्स्ट में अत्याचार है, उस जमाने में वो अत्याचार था नहीं। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में तुम बोलो कि आज के डेफिनेशंस के बेसिस पे भी तब अत्याचार नहीं हो रहा था, तब बोलो भाई कैसे ये पॉसिबल था विदाउट टेक्नोलॉजी एंड विदाउट द अपग्रेडेशन ऑफ लाइफस्टाइल। आज मैं कैसे छत्रपति शिवाजी या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा हूं? हाउ द फक इज दैट पॉसिबल? Unless standards of quality of living has gone up. अगर quality of living has gone up, which means it was way down 800 years back, तो आज के डेफिनेशन से यस तब अत्याचार होते थे, मगर तब के डेफिनेशन में चूतिए वो अत्याचार नहीं था। इतनी सारी जो महान वास्तुकला देश भर में हमें देखने को मिलती है, वो अन्याय अत्याचार करके बनवाए गए थे। क्या हम आने वाली जनरेशन के दिमाग में क्या बातें डाल रहे हैं? चलो मिशनरियों के एजेंडा को पुश करने वाला कोई व्यक्ति ये बताए तो वहां पर एटलीस्ट सुनने वालों को पता होता है कि नहीं, इसकी तो हिंदू आस्था में, हिंदू सभ्यता में विश्वास ही नहीं है, तो ये तो ऐसी ही बात बोलेगा। परंतु जो व्यक्ति स्वयं को राष्ट्रवादी कह रहा है या फिर भक्ति की बात भी वो जो फिल्म में दिखा रहा है, उसके माध्यम से जब हम ये बात आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे तो कितना गहरा असर करेंगे, आप जरा सोचिए। मैं बता नहीं सकता कि फिल्म देखते समय कितनी अंदर से, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सच में थक गया हूं ये सब बातें बोल बोल करके, कोई फायदा नहीं है बोल के। मैंने ARM फिल्म के समय भी बोला, क्या हुआ? किसी ने, आपने सुना किसी और ने उसके बारे में चर्चा भी की? नहीं। मिन्नल मुरली के समय भी मैंने बात बोली थी, किसी को क्या लेने देना है, दिखा रहे हैं, चल रहा है, मिन्नल मुरली को प्रेज भी किया जा रहा है, प्रमोट भी किया जा रहा है, किसी को क्या लेने देना है? दिखाओ भाई, करो इस देश के इतिहास को, जैसे ब्रिटिशों ने झूठा इतिहास लिखा उसी को प्रमोट करो। कोई, इसलिए ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है, अपना खून जला करके कोई फायदा नहीं है, कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट कला और साहित्य के क्षेत्र में तो कुछ नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा असर भी यही क्षेत्र करता है। जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन से जो ये बातें देखेंगी, उनके मन पर क्या असर होगा, जरा आप कल्पना करके देखिए। प्रतीक बोरा देखो, बंगाल फाइल्स कांतारा चैप्टर 1 से बेहतर मूवी लगा। ये सब बातें जब वो देखेंगे, फिर आप कह दो कि हम भक्ति दिखा रहे हैं। हाँ, मंदिरों को अन्याय और अत्याचार के अड्डों के रूप में दिखाकर, या फिर अन्याय अत्याचार से हम खड़े किए मंदिर दिखा करके, फिर आप आने वाली जनरेशन के मन में भक्ति कैसे जगाओगे? हमारी इस महान वास्तुकला के प्रति प्रेम अच्छा, अभी आओ लाइन पे। हमको थोड़ा, अच्छा, पहली बात तो प्रतीक बोरा देखो पता नहीं है कि बंगाल के जैसा स्टेट कैसे ऑपरेट करता है। सबके सब डिवाउट हिंदू अपर कास्ट है जो कि गुंडे हैं तृणमूल के, ठीक है। इन लोगों को लगता है कि इंडिया का मेन प्रॉब्लम है कि लोग कितने ट्रांसजेंडर और एथीस्ट बन जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। वो भाई पोस्ट 1995 बॉर्न लोगों का प्रॉब्लम है, वो 1% 2% पॉपुलेशन है, वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। और उसे सॉल्व करने के लिए तुमको इतना भक्ति भाव लाना है कि तुमको झूठ पे झूठ, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का माँ बहन करके तुमको इतिहास सिखाना है। नहीं तो बच्चे एथीस्ट बन जाएंगे। What kind of soft bigotry of low expectation is this? You expect Indians and Hindus to be such insane fucking idiots and dumb fucks and low IQ morons that unless you show complete whitewashed, fluffy, nice pink strawberries in your ancient past, that they'll become anti-Hindus. तो हमें और डेजर्ट होमीज में क्या फर्क रह गया कि कांग्रेस का मानना था, शशि थरूर ने तो एडमिट ही कर दिया एक इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में विक्रम संपत के साथ डिबेट करते हुए कि यस वी काइंड ऑफ डिड सम शेनानिगन्स, वी हैड टू डू नेशन बिल्डिंग। तो उसके पीछे प्रेमिस ये था कि अगर तुम मुस्लिम बच्चों को ये दिखाओ कि APJ अब्दुल कलाम, AR रहमान बड़े रेस्पेक्टेबल कैरेक्टर है, औरंगजेब भोसरी वाला था, तो सारे के सारे मुसलमानों को लगेगा ओह हो, इसका मतलब हमारे कोई आइडल्स नहीं है। वो भी उतने गांडू नहीं है और हम भी इतने गांडू नहीं है, और हमारे बच्चे तो गांडू होंगे नहीं बिकॉज ऑफ दिस एरा दैट वी लिव इन। ये एकदम बहुत लो IQ एक्सपेक्टेशंस रखा जा रहा है इंडियंस से। जगाओगे जिस वास्तुकला की, जिन मंदिरों की रक्षा के लिए इस देश के करोड़ों लोगों ने अपने शीश कटवाए हैं, अगर उनके मन में भी यही घृणा भरी होती ना कि अन्याय अत्याचार करके मंदिर खड़े किए हैं, तो करोड़ों लोगों ने कभी अपने शीश नहीं कटवाए होते विदेशी आक्रांताओं के सामने, पर उन्होंने कटवाए शीश क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी आस्था है। नहीं प्रतीक बोरादे, इसलिए कटवाया क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। जो चल रहा था सब उससे काफी खुश थे, इसलिए जब शीश बचाने की बारी आई तो वो भी बचा लिया, मंदिर बचा लिया, मूर्तियां बचा लिए। वो आज के डेफिनेशन में एक्सप्लॉयटेशन ही था, मगर वो तब एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, इसीलिए बचाया। वीर वेगड़ा जी भील, उन्हें पता था कि सोमनाथ मंदिर हमारी आस्था है, तभी उन्होंने अपना बलिदान दिया उस मंदिर की रक्षा के लिए। अगर उन्हें पता होता कि अन्याय अत्याचार करके मंदिर खड़ा किया है तो कभी बलिदान नहीं देते अपना। अन्य अत्याचार नहीं कंसिडर किया जाता था उसको।
और कई मैंने ट्रेलर रिव्यू किया तब कहा था भाई जो प्लॉट हमें दिख रहा है ट्रेलर में उसके माध्यम से ये भी दिखाया जा सकता था। ट्रेलर में कोई प्लॉट नहीं दिखा, ठीक है, जो मूवी है उसके उसके साथ ट्रेलर का कोई संबंध ही नहीं है। तुमने अगर ट्रेलर देख के डिसाइड किया है कि नहीं देखूंगा, तुम भूल ही जाओ, ट्रेलर को पूरी तरह से इग्नोर करो। कुछ भी नहीं है ट्रेलर में स्टोरी का, वाइब का। कि पोर्तुगीज उन्होंने जो इंक्विजिशन लगाकर यहाँ पर लाखों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, हाँ? जो हिंदू कन्वर्ट होने से मना कर देते थे उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। आज भी गोवा में हाथ कतरो खाम पे जिसे बांध करके हाथ काट दिए जाते थे, जिंदा जला दिया जाता था। उसके विरुद्ध जो हमारे शिव जी के जो गण हैं, पंजुरली देव हो, गुलिगा देव हो, वे कैसे शक्ति दे रहे हैं पोर्तुगीजों के विरुद्ध लड़ने के लिए, ये भी दिखाया जा सकता था। तो कई मित्रों ने कमेंट किया था नहीं नहीं ये तो तीसरी शताब्दी में बेस्ड फिल्म है, इसमें कहां से पोर्तुगीज आ जाएंगे। दिखाए हैं भाई, पोर्तुगीज फिल्म में दिखाए हैं। और तीसरी शताब्दी में कोई ऑडियंस ने कहा था कि फिल्म को स्थित करने के लिए आपको अगर हिस्टोरिकल फिक्शन ही बताना। देखो डिमांड है कि फिर एक छावा ही होगा, फिर एक बंगाल फाइल्स और कश्मीर फाइल्स ही होगा, और कोई स्टोरी नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाई आई एम नाउ इवन happier with Rishabh Shetty ke finally he has given an avenue for the rare non-political, non-leftist, non-crazy leftist film lovers as well कि भाई एक अच्छी कहानी सुनाओ कोई, जो कि यूएसए में आज नहीं है। आई गारंटी यू जब ये इसके कंतारा चैप्टर 1 को लेकर पूरे दुनिया में जब हल्ला होना शुरू होगा, हॉलीवुड फैंस सबसे पहले उठ के बोलेंगे कि फाइनली यही इस तरह की मूवीज ही तो हम चाहते हैं। जिस वजह से उनको आरआरआर इतना अच्छा लगा, आरआरआर से ये तो बहुत बेहतर लगेगा सबको, उन सबको, क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक है, ग्राउंडेड है एक्सेट्रा। मगर यही हमको चाहिए इन द एंड। अच्छा स्टोरी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है। अच्छा स्टोरी में लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं, लेफ्टिस्ट घटिया मूवीज में भी लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं। राइट विंगर्स को प्रोपेगेंडा एग्जैक्टली कन्विंसिंगली आता नहीं है, थोड़े बहुत आजकल अच्छा पिक्चर्स बना लेते हैं, ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली है, एक चिप ऑन द शोल्डर है कि हाँ लेफ्टिस्ट को गलत साबित करना है। मगर अब हमारा इंडस्ट्री इतना मैच्योर हो रहा है कि नॉन लेफ्टिस्ट कंटेंट ऐसे भी बन रहे हैं जिसका एकमात्र टारगेट ये नहीं है कि लेफ्टिस्ट को कैसे पकड़े, वो मुसलमान राजा का गलती कैसे दिखाए। ये एकमात्र गोल नहीं है ऋषभ शेट्टी के जिंदगी का। थैंक गॉड फॉर दैट। वी वांट गुड स्टोरीज, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्रीज। सिर्फ और सिर्फ बुक्स के रिप्लेसमेंट ढूंढते फिरोगे तो भाई देखो ऑलरेडी बंगाल फाइल्स फ्लॉप कर चुका है। कितने दिन ये फाइल वो फाइल, अब क्या कादम्बा फाइल्स बनाना था ऋषभ शेट्टी को, पोर्तुगीज फाइल्स। ये हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, XYZ इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। ये एक प्रॉब्लम नहीं है देश का, और इसका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन नहीं है देश का। देश का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमको ठीक इतिहास नहीं पढ़ाएगा। वो चुतिया उस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरा का पूरा सब फिल्म डायरेक्टर बैठ के नहीं करने वाले हैं, वो उनका काम नहीं है। दिखाना था तो आप पोर्तुगीजों के समय भी कहानी को स्थित कर सकते हैं, और किया है स्थित। यहाँ पर पोर्तुगीज दिखाए हैं फिल्म में, जो कुछ विदेशी ट्रेडर्स वगैरह दिखा रहे हैं ना, उसमें कुछ अरबी दिखाए हैं, कुछ पोर्तुगीज दिखाए हैं, कुछ दूसरे चाइनीज वगैरह भी दिखा रहे हैं। तो पोर्तुगीजों के इंक्विजिशन को भी अत्याचार के रूप में दिखाया जा सकता था, और फिर कैसे हिंदू राजा कदम राज। हाँ, और वो क्या गोवा फाइल्स नाम होता उसका, पोर्तुगीज फाइल्स नाम होता, और ये पहले दिन में 65 करोड़ नहीं कमाता। मैं ही नहीं देखता, मुझे फिर से नहीं जानना है, वो तो मैं हिस्ट्री बुक से ही पढ़ लूंगा। वंश के और साथ में ही जो हमारे कंतारा के जो जनजातीय समाज के लोग हैं, वो दोनों एक साथ में मिलकर के पोर्तुगीजों के विरुद्ध कैसे लड़े, ऐसा भी आरआरआर की तरफ फिल्म बनाई जा सकती थी ना। जैसे कैसे ये देखो, धूमकेतु is making another very important point. I don't know if he meant it this way, but I'm going to take it up. He's saying there is a leftist propaganda to show tribal rituals as something opposite and distinct from Brahminical rituals and Vedic rituals. Okay, भोसले के वो भी नहीं किया है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ऋषभ शेट्टी बोलता कि ये आपके पूज्य थे, अब हम इनकी पूजा करेंगे, तो उसमें वो द्रविडियन एंगल नहीं है एकदम भी। हर जगह पे जहां पे ऋषभ शेट्टी खेल सकता था, लेफ्टिस्ट द्रविडियन खेल सकता था, डेलिबरेटली जाके उसका पूरा उल्टा खेला है ऋषभ शेट्टी ने जाके। राजा मौली जी ने बनाई ना, कुमाराम भीम जी, अलोरी सीताराम राजू जी दोनों मिलकर के कैसे लड़ रहे हैं, ये दिखाया ना। हिस्टोरिकल फिक्शन बनाना है तो ऐसे बनाओ ना। और आप क्या दिखा रहे हैं, मिशनरियों के एजेंडा को पुश कर रहे हैं, और फिर आप बता दो कि हम भक्ति दिखा रहे हैं। कहां, कैसी भक्ति? आप तो लोगों के मन में मंदिरों के प्रति जो आस्था है, उसके बेस को ही, उसके फाउंडेशन को ही ध्वस्त कर रहे हैं। भाई ये पार्ट 2 में नहीं होगा। देखो, पहले प्रतीक बुरादे का आर्गुमेंट ये था, जो कि काइंड ऑफ कूल आर्गुमेंट था, कि पार्ट 2 में जितना भी श्रद्धि भक्ति का चीज दिखाया होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा एक अर्बन एथीस्ट एडजेसेंट लड़के के बच्चे के दिमाग में, क्योंकि
वो सोचेगा कि अच्छा ये सब तो सुपरनैचुरल चीज है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, मगर जो सच्चाई शुरू में है कि अच्छा एक्सप्लॉयटेशन से मंदिर बन रहा था, वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा। वो एक सेक्शन होगा उसको, वो पहली बात कांतारा चैप्टर 1 नहीं देखने वाला है, ठीक है, आई गारंटी यू। ए नॉन बेंगोलिस्ट तो पूरे जिंदगी में 2-4 लेफ्टिस्ट देखे होंगे। आई एम सराउंडेड बाय लेफ्टिस्ट, आई एम टेलिंग यू नन ऑफ देम आर गोइंग टू वॉच कांतारा चैप्टर 1। The people who are going to watch it and especially the people who do feel the real shraddha and bhakti at the end of the movie because of the second half, उन पर्टिकुलर लोगों को जो कि मेजॉरिटी है देश में और कांतारा चैप्टर 1 देखने वाले लोगों में से, उन लोगों को चैप्टर 1 का ये जो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा है वो कैसे दिमाग में रजिस्टर करेगा? उसका दिमाग तो श्रद्धा और भक्ति से भरा रहेगा बिकॉज ऑफ द सेकंड हाफ। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लमेटिक है किसके लिए? जो देखेंगे ही नहीं उन लोगों के लिए। ये देखो तो देयरफॉर ये कितना घटिया अनफेयर रिव्यू है प्रतीक बुरादे का। क्या रहा फिर? इस देश के करोड़ों लोगों ने क्यों अपने शीश कटवाए थे मंदिरों की रक्षा के लिए? क्यों सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए लाखों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था? क्यों दिया था? क्योंकि आस्था थी। वो मंदिर अन्याय और अत्याचार के अड्डे नहीं लगते थे उन्हें। यस, ये सत्य है, मगर इसलिए नहीं कि वो आज के डेफिनेशन से भी अन्य अत्याचार नहीं थे, इसलिए ऐसा नहीं है। चलो ये सब बातें भी अगर छोड़ देना, तो भी फिल्म में वो जो जैसे कांतारा का पहला पार्ट था, वहां पर जो भाव जगता है ना, वो भाव ये फिल्म कहीं पर भी नहीं जगा पाती। फिल्म के एंडिंग में भी वो उसी प्रकार का कुछ रिक्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वहां पर 1% भी भाव नहीं जगता है कुछ। भाई अब तो तुम अपना भाव डालो अपने। अरे मेरा बॉडी बिल्डर का लंड वाला माइक का स्टैंड, हाँ मैं गाली देने वाला था, ठीक है, उसी वक्त पे रुक गया। हाँ तो भाव कहीं पे छुपा के रखो, ऐसा लो IQ भाव हमको तो नहीं चाहिए। तुमको तुम्हारा भाव मुबारक। सेकंड हाफ देख के आओ ऑडियंस लोग, प्रतीक बुरादे का बात ना सुन के देख के आके फिर बोलो कि कांतारा 1 जैसा भाव आया कि नहीं, ठीक है? फील ही नहीं हो रहा था फिल्म के एंडिंग में, और फिल्म के एंडिंग ऐसा लगता है कि अचानक से जस्ट ऐसे ही समाप्त कर दिया। बस यही लगता है कि कोई स्पॉइलर तो मैं नहीं दूंगा, मगर वो क्यों वो अचानक खत्म हो गया लगता है, वो भी समझ में आता अगर कांतारा 1 इनको समझ में आता। कांतारा 1 में एक जो काइंड ऑफ एब्रप्ट एंडिंग है, मतलब गुलिका देव और वो जमींदार राजा के बीच में, मतलब 30 मिनट का तो फाइट सीक्वेंस नहीं है, जो कि बहुत बढ़िया से महावतार नरसिम्हा में भी पोर्ट्रे किया गया है कि महावतार नरसिम्हा का काइंड ऑफ राइवलरी कर सकता है हिरण्यकशिपु, क्योंकि उसने वो ब्रह्मदेव से वो वर लिया है। मगर बाकी जो सोल्जर्स हैं उनके ऐसे ऐसे नरसिम्हा गायब कर देते हैं दुनिया से, ठीक है, मार डालते हैं। तो गुलिका देव के सामने कांतारा 1 में वो राजा जैसे कैपेबिलिटी का था, यहाँ पे जो स्पॉइलर कैरेक्टर्स हैं उनका पावर्स इन कंपैरिजन टू द ओपोनेंट वाज दैट ओनली, दैट इज व्हाई इट एंडेड अब्रप्टली। आई कांट बिलीव आई एम हैविंग टू एक्सप्लेन दिस ऑन अ प्रतीक बुरादे वीडियो, ही नोज बेटर। फायदा नहीं ये सब बातें बोल करके, अपना खून जलाना है केवल। चलिए, बाकी हाँ टेक्निकली बजट वगैरह खर्च किया हुआ लगता है। जो CGI से बाघ और जो कुछ बंदर या लंगूर आदि जो कुछ उन्होंने क्रिएट किए थे, वो भी उतने बढ़िया तो नहीं लगते, पर ठीक है, जितना बजट है फिल्म का 100-125 करोड़ जो बताया हाँ, अब विलन को मुस्लिम नहीं दिखा है तो VFX भी खराब हो गया। वाह वाह जा रहा है, उसके हिसाब से तो वो ठीक ही लग रहा था। तो विजुअल्स वगैरह ठीक है, कलर ग्रेडिंग वगैरह, सिनेमेटोग्राफी फिल्म की वगैरह, वो सब बढ़िया है। पर भाई जब आप जो देख रहे हैं वो आपको अंदर से इतना जैसे कोई अंदर से कुछ चुभा रहा हो, ऐसा पूरे 3.25 घंटे आपको फील हो रहा हो, तो सुंदर दृश्यों का करना क्या है? मेरा एटलीस्ट व्यक्तिगत रूप से यही अनुभव था फिल्म देखने का। बाकी ठीक है, आपके ऊपर है, आपको फिल्म देखना है नहीं देखना। बाकी मुझे तो व्यक्तिगत रूप से मैं बता नहीं सकता, मैंने जितना कहा वो आप जस्ट 1% समझ लीजिए, उससे भी कई ज्यादा पीड़ा फिल्म ने दी है। बाकी जो कुछ छोड़ गया तो मैं कांतारा चैप्टर 1 को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। 1 स्टार भी केवल जो शिव जी की भक्ति आदि दिखाई है बस उसके लिए सेकंड हाफ में। हालांकि देखा जाए तो वो भक्ति जो भक्ति दिखाया, अच्छा दिखाई है, उसकी आड़ में जो बातें दिखाई जा रही है वो और भी ज्यादा डेंजरस है।
पर ठीक है, उसके लिए मैं केवल 1 स्टार दे रहा हूँ। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस 16+ की रेटिंग के साथ में फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म में ऐसे कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है। जो कुछ एक रोमांटिक सीन बाथ टब में वगैरह जो दिखाया जा रहा है, वो जो ट्रेलर में आपने जितना देखा था वैसा ही है। इसके अलावा गला काटने का वगैरह, ऐसे गले पर चीर लगी हुई है, कट लगा हुआ है, ये वो दिखा रहे हैं। उससे ज़्यादा कोई ऐसा कोई खास वायलेंस वगैरह भी फिल्म में नहीं है। तो हाँ, यूएस 16+ रेटिंग है। बाकी जिन मित्रों ने फिल्म को देखा है, अगर तुम में से किसी ने भी कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि प्रतीक बुरादे ने ऐसा बोला था, तो तुम भाई फिल्म में देखना छोड़ दो। यू डोंट डिजर्व कांतारा चैप्टर 1. You don't deserve Kantara chapter 1. You don't deserve good cinema ever again in your life if you stop yourself from watching Kantara chapter 1 just because of Pratik Borade. I'll end this live stream now quickly so that when people think it's a review video, they can at least see it's a video shorter than 2 hours. Rukmini Vasant eyebrows look like Ada Sharma. Rukmini Vasant looks like Rukmini Vasant. I have never seen someone look that way. I said the same for Gangs of Wasseypur. Yes. Will you make a stream about the recent Madhya Pradesh cast? I don't have no clue what's going on in Madhya Pradesh. Okay then. Thanks a lot for joining the live stream, guys. Please, I don't usually say this, but please share this video around, especially with Hindi-speaking people who you think may or may not might be influenced by Pratik Borade's views. Okay. Spread it in those places where Pratik Borade's views are on this movie are gaining traction. Let them know there's an opposite view on this. Okay. Good night, guys. Bye bye. যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে